today's seminar on leveraging AI-powered software and optimizing export operations. We have with us Shri Ravi Kapasi, Member Committee of Administration, EPCS, and we have our today's guest or faculty, Lakshmi Gupta ji, who is the Director, ERP Solution Private Limited. Basically, जो इनका सॉफ्टवेयर है ERP सिस्टम है AI के थ्रू जो हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो इतने एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कि जो उनको सपोर्ट कर सके इस सेक्टर के लिए, क्योंकि ERP सिस्टम हमारे सभी यूज़ कर रहे हैं बट उसमें फर्दर कैसे और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, तो मिस्टर लक्ष्मण गुप्ता जी आपको आज बताएंगे। फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री रवि पासी जी को कि हमारे गेस्ट का ग्रुप के देखिए वेलकम करें। तो मैं आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लक्ष्मण गुप्ता कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे आज हमारी गैलरी है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कंपनी के बारे में भी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट के सेक्शन में या हैंडीक्राफ्ट के सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। And so as we know, AI comes with automation and artificial intelligence. Software is a mixture of automation and some roots of AI. जहाँ जहाँ भी हमने AI की चीज़ों का यूज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर में, वो मैं एक बार आपको ब्रीफ करता हुआ। Meanwhile, if you have any kind of questions, please feel free to ask. So Direct ERP Solution Private Limited is working on especially handicraft and furniture segment since 2009. We have implemented end-to-end solutions in handicraft section. So we have started the software implementation in Moradabad city of, you can say, handicraft. So जहाँ से basically origination हुआ. Designco was our first client. Then after that we have implemented the same kind of solutions in more than 250 clients, not only in India but outside as well. We are working in Vietnam, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. Few of the customers who is importing from India that also our client. US बेस्ड हैं या यूरोप बेस्ड हैं। बाइंग हाउसेस भी हमारे सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली जो पूरा एक इकोसिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंपोर्ट टिल द शिपमेंट, और बीच में जितने भी आपकी बॉडी आइडेंटिफिकेशन बॉडीज होती हैं, वो सारा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने उसको मैनेज किया। 50+ people and we are based out in Gurgaon. We have a small office in Dublin as well and one office in San Jose, Costa Rica. So majorly अगर हम segment की बात करते हैं, furniture industry we are serving, handicraft, leather industry, पूरा एक supply chain is also catering into that one, and perfume industry is there, textile, retail service and discrete manufacturing such as कुछ हमारे clients pipe manufacturing या स्टील फैब्रिकेशन में है, सो दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग द स्टील। पूरे इकोसिस्टम को सर्व करने के लिए 3 मेन प्रोडक्ट्स हमारे बने हुए हैं। वन इज सारम। सारम समथिंग विच इज स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ऑफ योर कस्टमर्स और केयर मैनेजमेंट ऐप। मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ भी दिखाऊंगा। चलो, तो डायरेक्ट ERP सॉल्यूशन एज अ प्योरली सॉफ्टवेयर ऑफ मैप्ट्रा, तो वी कॉल इट मात्रा। मात्रा इज सॉफ्टवेयर जो पूरा एक हैंडीक्राफ्ट या फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए सर्व किया गया है। लुकवेयर इज अगेन अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड बाइंग हाउसेस या बायर्स के लिए। दीज आर फ्यू कस्टमर्स। वसंत हो गए या कस्टमर्स में आपको these are the countries we are serving: USA, Europe, Costa Rica, Africa, India, Bangladesh, Vietnam and Indonesia. जोधपुर के जो एक्सपोर्टर्स हैं, सुशील उद्योग ऋषभ हैं,
Sun Art Export, Rajasthan Art and Craft, Space Handicraft, Vasant, Noble, RK, Shekhawati, Lumi Art, Neelkant Art and Craft, Kunstiko, Desaro, Bhikshu, Indian Factory, Indian Artware. तो आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट सेक्शन के लोग हैं वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर को बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं. उदयपुर इज इन द रेमन एक्सपोर्ट, रेमन ग्रुप जो है वो यूज़ करते हैं. जयपुर में आपके जयपुर क्राफ्ट है, AMD राजधानी, आर्ट एशिया इज ऑल्सो आवर क्लाइंट, Paris Elasis, Moradabad is Anuraj Export, Creative Concept, Architects, Design Pro, Path Overseas, Kumar International. These are flying. In Delhi section, I would say Aisira, Wamani, Blackbird is one of the base leading buying agencies using our software. Casa Decor, In Living, In Trading, Cinnamon and Sprinkle is also using our software. Surya Export, Ethic Products. These are our client. We have a good client list with the numbers. You would say satisfied client. Just coming on the software side, सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्कआउट करता है, AI की चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ की गई हैं, दैट. सो मेजरली जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स कैटर कर रहा है या बिजनेस मॉडल जो कैटर करता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सैम्पल डेवलपमेंट. आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम द इंस्पिरेशन मैनेजमेंट. जब बायर का इंस्पिरेशन आया, इंस्पिरेशन हमारा हो सकता है, बाइंग हाउस का हो सकता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो एक सैम्पल डेवलपमेंट के मॉड्यूल के थ्रू हमने इसको मैनेज किया हुआ. सो हाउ द सेशन विल गोज ऑन, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आई वुड से कि एक पॉइंटर्स बता दूंगा, देन विल कम इनटू द रियल या लाइव डेमो सॉफ्टवेयर का. मैं उसके शोरूम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था. सो इट इज़ लाइक दैट कि जब हम फेयर में एग्जिबिट करते हैं कहीं भी, तो वी हैव सम प्रोडक्ट लिस्ट. ये एक सारम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपके ERP से कनेक्टेड होगा डेफिनेटली. देन एंड दिस ऐप विल कम्प्लीटली वर्किंग ऑन ऑफलाइन मोड एज वेल. जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे सारे प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करता है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं एग्जीबिशन में गया और मैंने 500 आइटम सेलेक्ट किए, आई विल पुश all the items into the mobile application. It will show you the real time catalog. ये मेरी पूरी एक प्रोडक्ट कैटलॉग दिख रही होगी. Each product has a QR code. जैसे आप उसको स्कैन करेंगे, it will give the relevant data as well. For example, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, it will show you the relevant detail. उसका SKU नंबर वगैरह क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है उसका लोडेबिलिटी क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. तो दोज थिंग्स आर देयर सो दैट यू कैन शो टू योर कस्टमर की प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल मेरी क्या क्या चीज़ें आती हैं. द बेस्ट थिंग कि अगेन ये ऑफलाइन चलता है. लेट्स सपोज कस्टमर आपके मार्ट में या शोरूम में विजिट करता है. आपका कस्टमर जैसे ही आता है, आप उसका विजिटिंग कार्ड स्कैन कर सकते हैं. जैसे मैंने एक अभी मेरे पास अभी हाथ पे विजिटिंग नहीं है, saving the customer name. ये चीज़ें मैंने डाली, कस्टमर का विजिटिंग कार्ड क्रिएट किया. नाउ आई एम स्कैनिंग द प्रोडक्ट. जैसे ही मैं स्कैन करना स्टार्ट करूँगा, इट विल कीप एडिंग द प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट डिटेल ऐड करेगा. लेट्स सपोज कस्टमर इज आस्किंग सम काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन या चेंज इन टू द प्रोडक्ट, यू कैन जस्ट रजिस्टर दैट एज वेल एज अ रिमार्क, और मे बी you can annotate the image also. For example, customer ने बोला कि मुझे फिनिश कुछ और चाहिए. You have a different swatches as well. आपने फोटो क्लिक की, स्वैच की, यूज़ किया. In case let's suppose you have any kind of comment on that image, just add that. It will save the image as a reference of the selection sheet. सेव कर दीजिए. अगेन यू कैन कीप कंटिन्यूइंग एडिंग द प्रोडक्ट. अब इसको दोबारा ऐड करिए एंड जैसे ही आपका सिलेक्शन लिस्ट पूरा होता है, यू कैन जस्ट
generate multiple printouts या reports in PPT, PDF, Excel, और आप इसको हाथ में हाथ शेयर कर सकते हैं through email या WhatsApp कैसे. You have multiple options of generating product catalog and you can share right the moment. So this is the fair management app जिसके थ्रू आप ऑफलाइन प्रोडक्ट्स को या कैटलॉग्स को मैनेज कर सकते हैं. आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, आपके पास प्रोडक्ट हो या जो भी चीज़ें हो. अगेन जैसे मैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग की बात कर रहा था, इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट यू कैन डू द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एज वेल. द डिफरेंट फार्मूलाज यू कैन सेट इनटू द सेक्शंस बेसिस ऑन द डिफरेंट सेक्शंस की भाई मार्जिन कितना लेना है, लाइसेंसिंग कितना लेना है, एक्सचेंज रेट्स क्या हो सकता है, FCL क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है. Those things parameters you can set out and it will ask you कि full container load है या LCL है. जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपको सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट डालनी है. फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ आयरन 5 kg और उसकी कॉस्ट आपने डाली कि 850 रुपये kg है. आपने सेव किया. बेसिस ऑन दैट वन इट विल गिव यू द डिफरेंट मार्जिन्स ऑफ द कॉस्ट एज वेल. ये देखिए मैंने मटेरियल कॉस्ट डाला, इसके बेसिस पे इसने लेबर कॉस्ट, बेस कॉस्ट, पैकिंग मिसलेनियस, जो भी आपने फॉर्मूले अप्लाई किए होंगे उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर सकते हैं एंड देन शेयर कर सकते हैं अपने बायर्स के साथ या बाइंग हाउसेस के साथ. सो दिस वाज द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट द फेयर मैनेजमेंट है. ये आप शोरूम में भी यूज़ कर सकते हैं. The app is something which is you can generate the QR codes. For example, sometimes होता है कि हम अपने एग्जीबिशन में लास्ट टाइम तक अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं and this app is syncing with the ERP as well. लास्ट टाइम पे आपका कोई प्रोडक्ट आया है, आप ऐप के थ्रू प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, फोटो वगैरह खींचे, आपका SQ जनरेट हुआ which is again syncing with the ERP बैकएंड में आपका कनेक्ट होगा उसके साथ. आपके एग्जीबिशन में मैं क्या काम कर रहा हूँ, जैसे सपोज समबडी नोज कि मेरा मैनेजर मुझे जानना चाहता है कि एक्चुअल में सेल्स पर्सन या मर्चेंट एक्चुअल में कितने कस्टमर्स को सर्व कर किया उसने, कितने विजिटिंग कार्ड्स इकट्ठे किए. दोज थिंग्स इज अगेन विद द सिंकिंग ऑफ दैट वन. जो भी आपका एक मैनेजर है या जैसे सपोज आपके फैक्ट्री के लोग हैं वो देख सकते हैं इस चीज़ को. सो दैट फीचर इज ऑल्सो देयर. अगेन ऐप आपका ऑफलाइन चलता है बट टू नो कि आपका मर्चेंट या आपके सेल्स पर्सन वहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर दैट वन यू नीड अ इंटेंट. जो भी इनवाइसेस होंगी, परफॉर्मा इनवाइसेस बेसिकली यू कैन मैनेज इनटू दैट. सो अंडर द बायर ऑर्डर मैनेजमेंट इट्स नॉट ओनली टू मैनेज द बायर ऑर्डर, इट इज़ समथिंग कि सिस्टम आपको इस तरीके से हेल्प करेगा आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल आपके मर्चेंट को क्या एक्स फैक्ट्री बायर को देनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ऑर्डर आया, पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं, द सिस्टम विल एनालाइज द थिंग्स एंड बेसिस ऑन दैट वन कि उस ऑर्डर का फुलफिलमेंट कितने दिन में होगा. यू कैन जस्ट पुट दैट वन एंड सिस्टम विल सजेस्ट कि आपका एक्स फैक्ट्री ये सजेस्टेड होना चाहिए. अगेन वी एक्सपोर्टर्स आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सिस्टम आपको रोकेगा नहीं, विल सजेस्ट कि क्या आपको एक्स फैक्ट्री लेना चाहिए. लेकिन जैसे वो ऑनलाइन होगा तो जो डेटा उसने डाला होगा सिस्टम पे वो मेरे पास आ जाएगा. और जो इसका आपने बताया कि जो बायर ऑर्डर आता है तो उसमें मुझे एक्सपेक्ट अगर उसको शिपमेंट डेट देना है तो बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रनिंग इन द फैक्ट्री वो उसमें से जनरेट कर देगा टेंटेटिव. हाउ इट विल कैटेगराइज कि मेरा एक 10 आइटम बन रहा है तो 10 आइटम में अगर मेरा कौन से जिसका ऑर्डर आया उससे रिलेटेड ही मुझे बताएगा, किस हिसाब से बताएगा? तो बेसिकली जो वॉल्यूम मैंने बुक किया होगा अपने सिस्टम में, और क्योंकि मैं रनिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो भी मेरी एक्स फैक्ट्री है, वॉल्यूम जो मेरी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको मैप करता है सिस्टम. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कैपेसिटी कह सकते हैं या एक्सपोर्ट टारगेट कह सकते हैं. मान लीजिए आपने एक टारगेट रखा कि मुझे 100 CBM पर वीक एटलीस्ट बेचना ही बेचना है, वो उसके बेसिस पे बैक ट्रैक करेगा. डिफरेंट फैक्टर्स हैं. ऑल्दो जब आप प्रोडक्ट मास्टर बनाते हैं सिस्टम उसका लीड डेज लेता है, इस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगने वाला है, या एक्स फैक्ट्री के डेज में
buyer and these time buyer is very demanding. आज order देगा बोलेगा 30 days में आप fulfillment कर दो. That is also a possibility. अब order का क्या priority हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग प्लानिंग मॉड्यूल, पूरा एक प्लानिंग मॉड्यूल है, उससे वो अपना डेटा एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे सजेस्ट करता है कि क्या फैक्ट्री आपको लेनी चाहिए. ये बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड नहीं होगा. बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर आपका VI स्टैटिक्स लगा हुआ है, बिजनेस इंटेलिजेंस लगा हुआ है. आप चाहें अपने पूरी स्क्रीन को डैशबोर्ड VI टूल इसी के अंदर इनेबल्ड है. आपकी जितनी भी स्टैटिक्स हैं आप इसके थ्रू अपना डेटा खुद कास्ट कर सकते हैं. तो खैर रिपोर्टिंग में या अभी जब हम बात करेंगे VI की उसके बारे में बात करेंगे. लेट्स कम ऑन द सैम्पल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें. तो सैम्पल डेवलपमेंट या इंस्पिरेशन मैनेजमेंट इसका पूरा जो एक सेक्शन है कुछ इस तरीके से दिखता है. अंडर द सैम्पल डेवलपमेंट यू कैन रजिस्टर सो मैनी थिंग्स. जैसे मैं डाइनिंग टेबल की का डिटेल लेता हूँ तो इट इज़ आस्किंग यू दैट कि आपने नया SKU बनाया है, इसका स्टाइल नंबर क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका फिनिशेस वगैरह क्या है. मे बी आपका प्रोडक्ट मल्टीपल फिनिश के साथ हो, यू कैन जस्ट सेलेक्ट मल्टीपल फिनिश एज वेल. एंड काइंड ऑफ कीवर्ड्स, जो भी आपको कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसका नेम क्या है, उसका कलेक्शन क्या है, उसके रॉ मटेरियल क्या है. प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कैन बी वेरी इनटू द हार्ड गुड्स एंड द सॉफ्ट गुड्स. प्रोडक्ट आपका KD में आता है, KD की कैटेगरी में आ रहा है या इक्वल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दोज थिंग्स यू कैन डिफाइन एज अ प्रोडक्ट मास्टर. यू कैन से आपका जो भी सैम्पल डेवलपमेंट सेक्शन में आता है उसमें. तो सैम्पल डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस हैं कि आपने एक प्राइमरी डेटा लिया, देन उसके बाद आपका वो डेटा आगे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट से फिर सिलेक्शन लिस्ट कैसे बन रही है, ये सारा डेटा आपका इंक्लूडेड है. जैसे आप प्रोडक्ट सैम्पल के अंदर ही हम देखेंगे कि आपका मेजरमेंट है, देखिए इंचेस में है, सेंटीमीटर में है. सो इट इज़ ऑटो कन्वर्टेबल एज वेल कि आपका यूरोपियन बायर अगर होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट इनटू द सेंटीमीटर एंड US बायर है तो वो आपका इंचेस में उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आगे तक कैरी फॉरवर्ड करता हुआ जाएगा. Maybe product have a multiple components, you can register as the component also. What kind of materials you have, you can just set out the different material also. May have a product nested detail. Nesting means sometimes product have a set of different items, set of 2, set of 3, something like that. Or maybe sometimes you are nesting the product into the bigger item. एक पफी को आपने एक टेबल के साथ एक नेस्ट करके भेज दिया. That is feature is there, you can just register. A part of that one system is always suggesting you the runtime cost also. Runtime cost means sometimes you made the costing with one of the product. आपने उसकी जब कॉस्टिंग की आज के डेट में तो मटेरियल की कॉस्ट कुछ और थी, बट कल प्रोडक्ट या मटेरियल आपका फ्लैक्चुएट हुआ और उसके बेसिस पे रेट रिवाइज होगा. तो जो भी आपकी रन टाइम कॉस्ट होगी सिस्टम विल ऑलवेज टेल यू कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या चल रही है, so that you can make a comparison. You have multiple, one product may be offered to the multiple buyers as well. जैसे मैं इस प्रोडक्ट को मल्टीपल बायर्स को ऑफर कर सकता हूँ विद अ मल्टीपल प्राइस एंड पैकेजिंग स्टाइल. कि आपका बायर के साथ क्या प्राइस ऑफर हुआ, कितना कंफर्म हुआ, व्हाट बायर हैज़ व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग स्टाइल. आपने मास्टर बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं, आपने इनर बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल आपने मास्टर बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं, तो सिस्टम विल आल्सो टेल यू द कॉस्ट ऑफ द कार्टन एज वेल. जो भी कार्टन इंडस्ट्री के आपके रूल रेगुलेशन या फार्मूले हैं इसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं. वेन एवर यू फिल द साइज ऑफ द कार्टन इट विल टेल यू द रेट ऑफ द कार्टन एज वेल. उसका क्या जिसके बेसिस पे आपका लेंथ वेट हाइट क्या है एंड क्या आप किस प्लाई का आप कार्टन यूज़ कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट वन इट विल गिव यू द CBM of the product also. Again it will tell you the container loadability of the product also.
कि 40 या 20 या 40 हाई क्यूब में आपका कितना जाएगा प्रोडक्ट. इफ बायर इज एसोसिएटेड विद अ मल्टीपल काइंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर इन्वॉल्व, कभी कभी बायर आपका टेस्टिंग या लैब रिपोर्ट्स आस्क करता है, सो इट विल अटैच विद दैट एज वेल. तो ये डेटा मैं एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ, सो दैट कि जब मैं इस प्रोडक्ट का ऑर्डर लूँ या मेरा प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन में चले तो सिस्टम मुझे हर चीज़ का एक रिमाइंडर या नोटिफिकेशन भेजता है. अभी मैं कोई और नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ, 80 एकर्स को, और इसका जो प्राइस कंफर्मेशन है वो 500. सो इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ मल्टीपल लाइन्स. बाकी डिटेल तो सेम ही रहेगी तो बेसिस में. हाँ, बहुत सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग पे होती हैं हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत यूज़र्स या जो हमारे इन वर्कर्स हैं वो उतने स्किल सेट नहीं हैं. डिमांड क्या है कि जो भी ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो एक टेम्पलेट, वो एक प्रोसीजर सेट करें जिसको सारे लोग फैक्ट्री में रिलीजियसली फॉलो करें. प्रोसेस थिंकिंग ये है सॉफ्टवेयर. बॉस अगर नहीं फॉलो होगा दैट वी कैन गेट Definitely. नॉट फॉलोइंग. राइट, अगर आपको नहीं फॉलो होगा तो पहले तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा. बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिटिकल पाथ शेयर करेगा, क्रिटिकल रिमाइंडर्स भेजेगा मैनेजर्स को, आपको, या जहाँ जो भी चीज़ें आपने सेट की होंगी. इसका एक खुद का बॉट सिस्टम है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट वन. अपार्ट ऑफ दैट जो इसका बॉट है वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कोई बायर का विजिट होना है, हम अभी क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने और हम उससे शेयर करते हैं कि भाई इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप इसमें शेयर करना, सो दैट वी हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म. ये बॉट क्या करेगा, आपके इसका एक डिस्कशन फोरम है. अंडर द डिस्कशन फोरम यू कैन सेट कि आप इसके अंदर ग्रुपिंग बना सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं. कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ये आपको उसके अंदर हमेशा भेजता रहेगा. एक स्लैक को रिप्लेस करके इसका एक बॉट सिस्टम बनाया गया है. Odoo बॉट यूज़ किए गए हैं बेसिकली, जो कि हमेशा देखते रहते हैं कि आपने क्या चीज़ किस दिन में शेड्यूल की थी और उस शेड्यूल एक्टिविटी पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो ये आपको मेल्स या रिमाइंडर्स भेजना स्टार्ट करेगा. दैट इज इट. डॉक्यूमेंट आपका ब्लू बुक हो सकता है, कैट फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यू कैन जस्ट डायरेक्टली अटैच इनटू द एज अ अटैचमेंट सीधा. और कोई भी फाइल, एक्सेल, पीडीएफ, कैट, आप इसमें अटैच करके रख सकते हैं. So this is a kind of little bit information about the product. अगर मैं इसी का बिल ऑफ मटेरियल की बात करूं, बिल ऑफ मटेरियल आई होप एवरीबडी नोज. तो बिल ऑफ मटेरियल इज समथिंग कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो वी हैव इंक्लूडेड बिल ऑफ मटेरियल, या मटेरियल को हमने इंक्लूड किया है प्रोसेस के साथ. हर प्रोसेस को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रूट टिकट बनाए गए हैं. सो राउटिंग इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द मटेरियल. अगर आपका मटेरियल वुड है तो सिस्टम अपने आप प्रोसेस स्टार्ट करेगा आपका मशीनिंग, असेंबली, सैंडिंग, समथिंग लाइक दैट. अगर आपका मटेरियल आयरन या मेटल है तो फैब्रिकेशन से प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है. तो डिफरेंट रूट टिकट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्री कन्फिगर्ड हैं. उसके अंदर के सब प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपकी फिनिशिंग के प्रोसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है या पॉलिशिंग होनी है. दोज थिंग्स यू कैन डिफाइन इनटू द ईच फ्लोर ऑफ ईच प्रोसेस ऑफ द सिस्टम बेसिकली. जैसे यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि मैंने एक मशीनिंग का प्रोसेस बनाया हुआ है. तो मशीनिंग इज समथिंग विच इज़, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने वुड यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ ओपन विद अ मशीनिंग बॉम्ब, यू कैन से. ईच process has 5 different things. One has a process time, the labor cost of that process, again sub process which may happen into that main process. तो बेसिकली जैसे मशीनिंग है, मशीनिंग का एक प्रोसेस है, उसके अंदर सब प्रोसेस हो सकते हैं आपके. CNC हो सकती है, कटिंग हो सकती है, क्लैंपिंग हो सकती है, कुछ भी जिसको भी आप डिफाइन करना चाहें. तो अगेन टाइम, cost, sub-process, material and the quality parameters.
5 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। जैसे हर बिल ऑफ मटेरियल या प्रोडक्ट जो आपका है या आइटम है, उसके लिए सिस्टम ने 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैनेज किए हैं। सो एज यू सेड कि जैसे प्रोडक्ट का के अंदर वुड यूज़ हो रहा है, उसके अंदर आपके प्लैंक्स लग रहे हैं। प्लैंक्स में है वह कि आप काउंटिंग कर सकते हैं इनटू द नंबर्स, कितने पीस लग रहे हैं, और उसका एक इक्विवेलेंट CFT हो सकता है। तो सिस्टम ने दोनों चीज़ें मैनेज की है। सॉफ्टवेयर में आप प्रोडक्ट का फिनिश साइज डालेंगे, आपको कट साइज किस साइज का प्लैंक लेना है सिस्टम आपको बताएगा, इंक्लूडिंग द वेस्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो बोर्ड है, मैंने एक वेस्टेज सेट कर दिया कि 30% वेस्टेज के साथ मुझे प्लैंक बताएगा, एंड इट विल टेल यू कि एक्चुअल में मेरा फिनिश साइज क्या है और उसके लिए मुझे किस साइज का प्लैंक लेना है। अगेन द काउंटिंग एंड द CFT विल ऑटो कन्वर्जन लगा होगा इसमें। तो जैसे ये वुड के केस में है, इन केस ऑफ मेटल होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम kg में खरीदते हैं और पीस में इशू करते हैं। दोज कन्वर्जन्स आर सेट इनटू दिस सिस्टम। एंड द लास्टली द क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर इज समथिंग विच इज़ द काइंड ऑफ कि आपने प्रोडक्ट को जब प्रोडक्शन होना है प्रोडक्ट का, आपके QC को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सारे पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आपके QC के लिए प्रॉपर एक चेकलिस्ट प्रिंट होगी, और उस चेकलिस्ट का डिसीजन मेकिंग या इमेज खींचना, ये सारी चीज़ें आपका QC करेगा, रीवर्क रिजेक्शंस वगैरह करेगा, एंड देन प्रोडक्ट को आगे मूव करेगा, मूवमेंट्स लिखना है। तो बेसिकली हमने 5 चीज़ों को इंक्लूड किया है इस मॉड्यूल के अंदर। और अगेन क्योंकि मटेरियल आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, तो सारी चीज़ों को हमने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में भी इफेक्ट इसका डाला है सीधा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि रन टाइम कॉस्ट सिस्टम निकाल के दे रहा है। अगर मेरे पास सिस्टम का प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल है, सिस्टम अपने आप इसका रन टाइम कॉस्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बता सकता है। तो मैं पीस में उन सबको अगर मुझे बॉम्ब में डालना हो तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है मैम, देखिए सिस्टम उसका बॉम्ब बनता ही नहीं है आसानी से। हाँ आसानी से नहीं बनता, बट बनता ही नहीं है क्योंकि कन्वर्जन रेट ही नहीं आता उसका। नहीं एग्जैक्ट नहीं आ सकता, ERP उसमें मिला नहीं मुझे, एग्जैक्ट नहीं आ सकता। देखिए हैंडीक्राफ्ट नेस्टिंग या उसमें एग्जैक्ट नहीं दे सकते, कोफिशिएंट बनेगा भी कैसे। जैसे मेरा अभी रॉ मटेरियल कॉटन का भी आया है, जो मैंने इशू करा तो मैंने प्लेन इशू करा, लेकिन जब रिसीविंग हुआ तो कलर रिसीव हुआ, तो कहते मैम रिसीविंग कलर हो रहा है, आपने इशू वाइट करा है। आपका जो कलर आया है वो WIP है, वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है बेसिकली। हाँ। रॉ मटेरियल अभी आपका जो प्लेन है वही है। हाँ। जो आप परचेज कर रहे हैं वेंडर से, वो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है जिसको आप बिल ऑफ मटेरियल में डालेंगे। आप अगेन उस पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो आपका एक जॉब ऑर्डर है, वो प्रोसेस कंट्रोलिंग का पार्ट है भाई। आपने क्या किया, सेम आइटम में वाइट कलर को जब डाई कराया तो डाई करके ये रेड कलर का हो गया। आपने सेम आइटम सेम है, प्रोसेस में वैल्यू एडिशन हो गया। सो बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल आइटम वही है, प्रोसेस एडिशन कर दिया आपने। तो बिल ऑफ मटेरियल में मैं कलर नहीं डालती, बिल ऑफ मटेरियल में आप प्रोसेस में उस आइटम को जोड़ेंगे। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्डवुड्स की बात करता हूँ तो आयरन का सरिया लिया और उसको मोड़ के जैसे सपोज कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, बट मेरा रॉ मटेरियल क्या है, आयरन का सरिया ही है। जो स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस है वो मेरा एक जॉब वर्क है। जॉब वर्क इज समथिंग व्हिच इज अ काइंड ऑफ लेबर कॉस्ट में जाएगा, वो वैल्यू चेंज ऑटोमेटिकली ऑल द टाइम्स द बॉम्ब। आज मैंने कॉस्टिंग के टाइम पे लिया 100, वो हो गया 190 या 110 हो गया, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली सब चेंज कर देगा, क्या होगा? करेक्ट। रन टाइम कॉस्ट में सिस्टम आपको बताएगा कि आज आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ये बैठी है। सो फॉर एग्जांपल जब आप कॉस्टिंग भी करते हैं, कभी कभी बायर्स के साथ जो आपका रनिंग आइटम चल रहा होता है, आप इसको फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज कर सकते। सिस्टम क्या करेगा, जो आपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की है, कॉस्ट शीट बनाई है, उस कॉस्ट शीट में आपको दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट था आपका $100 का, बट क्योंकि आज के डेट में प्राइस रिवाइज हो गई, सिस्टम उसको नहीं चेंज करेगा। एक अलग सेक्शन में आपको दिखाएगा कि जब आपने $100 की कॉस्टिंग की थी उस टाइम की थी, आज की इसकी कॉस्टिंग $110 की या $90 की, जो भी वेरिएशन। दैट इज कॉल्ड रन टाइम कॉस्टिंग।
सिस्टम इज मैनेजिंग 3 काइंड ऑफ कॉस्टिंग। पहला आप जो कॉस्टिंग करेंगे स्पेसिफिकली किसी बायर के लिए, दूसरा ये रन टाइम कॉस्ट दिखा रहा होगा, तीसरा जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगा, क्योंकि आपने बिल ऑफ मटेरियल सारी चीज़ें डाल दी हैं, बट एक्चुअल में स्टैंडर्ड को फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, आपने सोचा ये था बट एग्जीक्यूशन ये हुआ। तो सिस्टम आपको रन टाइम कॉस्ट सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट में दिखाएगा कि एक्चुअल में इतने रुपए में फैक्ट्री के अंदर ये बना, यू कैन कंपेयर कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपकी एग्जैक्टली जैसे ही आपका कंटेनर आउट होगा, सिस्टम विल गिव यू द रिपोर्ट कि इस कंटेनर में आप प्रॉफिट में थे या लॉस में। सर प्रैक्टिकली होगा, इतना डाटा आपको फीड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हो रहा है सर। देखो यहीं पे जैसे ये एटिक प्रोडक्ट आपका दिल्ली में ही है, ये वहाँ का आईटी देखते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में पूरा स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है। सो क्या आइटम क्या है सर? हार्ड गुड्स सबसे हमारे जैसे कि कपड़े का काम है, एक आइटम में कुशन कवर पे 100 आइटम्स हैं हमारे पास, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इतना झागा लगा के पास क्या लगा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट फीजिबल। देखिए वन टाइम जॉब है। वन टाइम जॉब है, आपको अगर कुछ चीज़ करने के लिए कुछ चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे फोकस आपको ये रखना है कि कितना आप इन्वेस्ट करके क्या चीज़ आपका आउटपुट आ रहा है, उसका वो रिलेवेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। आपका अगर वॉल्यूम उस लेवल पे जा रहा है कि भाई मुझे उस वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें कंट्रोल चाहिए, डेफिनेटली है तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे ये सिस्टम बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता है, PDF फाइल्स में डेटा होगा, आप उसको डाल दीजिए, अपने आप स्कैन करके 11 प्लेस पे ले आएगा। CSV फॉर्मेट है, आपके फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, डिफरेंट ज़िप फाइल शेयर करता है, अपलोड करिए डेटा अपने आप वो सैंपल डेटा हमें मेंशन करता है कि इस फॉर्मेट में मुझे डेटा प्रिपेयर करना है कॉस्टिंग निकालने के लिए। जी बिल ऑफ मटेरियल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है, इवन अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी ये फीचर्स तो है, बट वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बस ये है। वही वही आने से बटे उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे पास ये हो कि ऑप्शन की ये सैंपल डेटा है, जब भी जैसे मैं कोई भी CSV अपलोड करता हूँ तो मेरे पास एक सैंपल डेटा हो जिसके थ्रू मैं एक रेफरेंस शीट बना लूँ और वो रहते हैं फॉर ईच काइंड ऑफ टेम्पलेट्स, नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्ट। जैसे अभी प्रोडक्ट्स और आगे आएंगे तो इसके अंदर बहुत डिटेल्ड प्लानिंग है। हाँ। अब प्रोडक्ट की प्लान करने में भी ये सिस्टम 2-3 मिनट लेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा, उसके अपने अपने रीजंस हैं। आपको वो भी पता चला, ऑर्डर आया, समटाइम्स बायर ने ऑर्डर दिया, छोटे ऑर्डर्स दिए, 100 आइटम्स का एक साथ ऑर्डर दे दिया। अब एक्चुअल में उसकी फीडिंग करना एक डिफरेंट टफ टास्क हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट बना दिए। फॉर एग्जांपल हमारे हैंडीक्राफ्ट फील्ड में हमारे फैक्ट्री का कुछ ना कुछ एक फोटो होगा, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, या तो मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं पार्शियल कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे सिस्टम के अंदर सेट प्रोसेस बन जाती है। जैसे आपका ऑर्डर आएगा, सिस्टम बहुत सारी चीज़ें ऑटो एग्जीक्यूट नहीं, वो तो मतलब बात ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिंग को मैनेज करने के लिए। अगर आप ERP या सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ कल्चर, आपको अगर कल्चर बनाना है फैक्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा। अदरवाइज डिपेंडेंसी फिर अगेन उसी मर्चेंट पे रहेगी या That is the only thing, that's it. They don't want to work ना, dependency रहे। देखिए ये इरा है नॉन स्किल सेट रिसोर्सेज का। हम सब सुनते हैं न्यूज़ में कि लोगों की जॉब नहीं लग रही है या चीज़ें नहीं लग रही हैं। एक्चुअल में स्किल सेट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वी आर दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग कि हमारे स्किल सेट रिसोर्स हमें मिले ताकि हम काम कर दे सकें एक्चुअल में। बट वो स्किल सेट या वो इंटेंशन मिसिंग है, उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही फिलअप कर सकती है एक्चुअल में। अगर आप टेक्नोलॉजिकल नहीं चाहेंगे तो हमारा जो बिजनेस प्रोसेस है या जो हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो पीछे छूटती हुई चली जाएंगी। क्योंकि जनरेशन ऑन जनरेशन वी आर ऑन दैट सेक्शन की हैंडीक्राफ्ट या फर्नीचर की जनरेशन ऑन जनरेशन ही चीज़ें आई हैं। नए लोग अब इंक्लूड होना स्टार्ट हुए हैं। अदरवाइज पुराना जो एक लोग थे उन्होंने ही उस इंडस्ट्री को चालू किया। IT4 पहले तो इंडस्ट्री भी नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट प्लस हैंडीक्राफ्ट थैंक्स टू EPCH या गवर्नमेंट बॉडीज आई जिन्होंने एक्चुअल में उसको एक इंडस्ट्री नाम दिया। ये इंडस्ट्री एक्चुअल में इंडस्ट्री है और लोगों के रिकॉग्निशंस हुए।
फिर वहाँ से अब हम एक दूसरे पड़ाव पे हैं जहाँ पे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको टेक्नोलॉजिकली बूस्ट करें ताकि आने वाली जनरेशन वो अपने हाथ नहीं काले करने वाली। हमने अगर अपने हाथ काले किए तो हमारा जो नॉलेज है वो टेक्नोलॉजिकली हम उनको ट्रांसफ़र कर सकें, एक बेस बना के दे सकें ताकि उसके आगे वो उसको प्रोसीड करें एक्चुअली। सो दैट काइंड ऑफ विजन। सॉफ्टवेयर आप आज के लिए नहीं लगा रहे हैं, आपको आप कर रहे हैं, अच्छा कर ही रहे हैं, बट आगे और अच्छा करना है उसके लिए आपके विजन के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें, राइट। And this can be operated anywhere, like if I'm away from the factory, anywhere in the world, so I can. Yes, it's a cloud based. We have a different mobile application. We have access controls. जहाँ पे किसको क्या दिखना है, we have a geo fencing. फैक्ट्री के अंदर आएगा तभी चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। डेटा सिक्योरिटी, प्रोडक्ट डिज़ाइंस, हैंडीक्राफ्ट में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा सिक्रेसी और इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। कंट्रोल्स बहुत स्मूथली आपको मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंट्रोल आज आपको मिलेंगे तो कंट्रोल आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। और ईमेल भी से रूट हो सकती है। ईमेल भी से रूट हो सकती है, लेकिन मतलब ईमेल, व्हाट्सएप सब कनेक्टेड है। इट इज समथिंग कि बायर को आपको मेल करना है, आपने क्लिक किया, ऑफर शीट बना और ऑटोमेटिकली बायर को मेल। तो बेसिकली टेक्निकली अगर इसका इंस्टॉलेशन देखें तो ये इट हैज टू पार्ट्स। एक एपीआई सर्वर होता है, एक डेटाबेस सर्वर होता है। तो डेटाबेस सर्वर यू कैन होस्ट योर ओन प्लेस एनीवेयर। जो आपका एक्सेस होगा वो एपीआई सर्वर होगा जो कि हमारा क्लाउड है। तो डेटा को हमने अपने एपीआई सर्वर से अलग कर दिया क्योंकि डेटा ओनर आप, लेकिन वी कैन नॉट एक्सेस द डेटा बेस डायरेक्टली। सो दैट्स व्हाई डेटाबेस आप जहाँ चाहें वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एपीआई सर्वर विल हैंडशेक ऑन दैट। अगेन अगर आप इन हाउस रखते हैं दैट आपको फिर एक लाइव आईपी है जो उसमें रिक्वायरमेंट्स है दैट वी हैव टू फुलफिल। हाँ, वो तो हमें पब्लिक आईपी चाहिए होगा। हाँ, पब्लिक आईपी या डोमेन या ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स में अगर हम आए, जैसे मैं सेल ऑर्डर उठाता हूँ तो ऑर्डर्स और प्रोडक्ट के बीच में एक ऑफर शीट या सीआरएम का मॉड्यूल है जिसको मैंने ऐप के थ्रू दिखाया। मैं सिस्टम में नहीं दिखा रहा आपको। अगेन जो भी चीज़ें आप ऐप के थ्रू कर रहे थे सेम सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी अपडेट होंगी। और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी इस ऐप में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपने पाइपलाइन बनाई हुई है, ऑफर शीट बनाया हुआ है, उस ऑफर शीट के लिए आप अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायर ने 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, 10 प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे आज मैंने उसको ऑफर शीट भेजा बट मुझे 2 दिन बाद उसका शेड्यूल देखना है या 2 दिन बाद मुझे उसको वापस मेल करना है, कॉल करना है। यू कैन शेड्यूल द एक्टिविटी एज वेल। आप उसके एक्टिविटी में जाइए, प्लान कर लीजिए, प्लानिंग का नाम डालिए। सपोज यहाँ पे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 14 को कॉल करना है, आप उसको कैलेंडर में ओपन करिए, ये अपने आप एक शेड्यूल एक्टिविटी शेड्यूल कर देगा। एंड इट विल सेंड द नोटिफिकेशन एज वेल। जैसे हमारे फ़ोन में अलार्म्स बजते हैं, ये ठीक उसी तरीके से आपको अलार्म या प्रॉपर सब सारी नोटिफिकेशन भेजेगा। सो कीप काइंड ऑफ जो हमारा टाइम लगता है फॉलोअप में उसको रिड्यूस करने की। वैसे ही आपका मर्चेंट या सेल्स पर्सन या आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई मुझे ईमेल करनी थी, किसको कॉल करना था, किससे मेरी मीटिंग थी या किसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट भेजना था, रेड इज शोइंग कि भाई ये डेट निकल गई है, ग्रीन इज समथिंग विच इज़ की आने वाली है, ए इज समथिंग कि बंदे का नाम क्या है। एक्चुअली मैंने ए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रखा हुआ है इसलिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सीआरएम या सेल्स में है, इट इज़ थ्रू आउट ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इवन से आपका चाहे प्रोडक्शन चल रहा हो, चाहे वो आपका शिपिंग हो, चाहे वो आपका परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी शेड्यूल की जा सकती है और दे जा सकता है। जैसे मैम आप पूछ रही थी कि मैं कोई टास्क शेड्यूल करूँ, द सेम एक्टिविटी इट विल मेक। सिस्टम अपने आप टास्क शेड्यूल करता है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन साइकिल या जो भी आपने डिफाइन किया है। पार्ट ऑफ दैट आप कोई भी टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ आपका गूगल कैलेंडर या आउटलुक कैलेंडर भी सिंक हो जाता है। आई एम कमिंग इनटू द ऑर्डर। ऑर्डर के लिए जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, इस डाइनिंग टेबल का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जो भी कस्टमर को
आपका को परफॉर्मा भेजना है या इनवाइस भेजनी है, उसके लिए जितनी भी पैरामीटर्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी इस पर अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका प्लानिंग चार्ट सिस्टम बनाता है। बेसिस ऑन कि आज आपने ऑर्डर लिया और आपकी एक्स फैक्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे ये आपके डेट शेड्यूल करेगा। या आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं 42 डेज में नहीं 50 डेज में इस ऑर्डर का फुलफिलमेंट करूँगा, वो चीज़ें आपको बनाएंगी। द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स, आप स्टॉक ऑर्डर बुक कर सकते हैं, आप फॉरकास्टेड ऑर्डर बुक कर सकते हैं, सैम्पल का ऑर्डर बुक कर सकते हैं, ट्रायल रन हो सकता है, डोमेस्टिक के ऑर्डर ले सकता है। जिस हिसाब से आपका ऑर्डर टाइप होगा सिस्टम उसके हिसाब से अपनी खुद की प्लानिंग शेड्यूल करेगा। सो इट इज़ लाइक दैट। जैसे TJX है, TJX एक बल्क ऑर्डर देता है और बाद में हमें एक अलग अलग ऑर्डर्स डिवाइड करके देता है कि भाई 1000 पीस के ऑर्डर में उसने फिर 500 पीस और 200 पीस या 250 पीस का डिवीज़न जो भी किया होगा। सो यू कैन ट्रेस डाउन कि एक्चुअल में क्या स्टॉक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग आपका रिकन्सिलेशन कितना होगा। दोज थिंग्स यू कैन मैनेज इनटू द ऑर्डर मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट एज आई सेड कि आपको एक्स फैक्ट्री सिस्टम मैप करके देता है। मैप करता है मीन्स जो भी हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी या एक्सपोर्ट टारगेट हम रखना चाहते हैं उसके बेसिस पे सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी एक्स फैक्ट्री क्या होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स फैक्ट्री फॉलो हो, सॉरी एक्स फैक्ट्री का जो सजेशन है वो आप उसको फॉलो करें। इट विल, आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। देन उसका शिपिंग एड्रेस, इनवाइसिंग एड्रेस, टाइल्स, इसका पोर्ट ऑफ लोडिंग, उसका डिस्चार्ज क्या होगा, जो भी चीज़ें चाहिए। मतलब आई मीन दिस इज ऐसे ऑर्डर मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी हैं, बट उसके अंदर सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा थी जो मैंने आपको चीज़ें बताई। जैसे ही आप ऑर्डर लॉक करते हैं, बेसिस ऑन द ऑर्डर इट विल क्रिएट अ PPIC विच वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड एक्शन प्लान एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंटरी कंट्रोल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि प्रोडक्ट का डिटेल प्लान सजेस्ट करता है कि कौन सा काम किस किस दिन तक हो जाना चाहिए। जैसे ये वुडन आइटम था, उसने बोला कि PPIC या प्लानिंग डन इस दिन हो जाना चाहिए, रॉक का PO इस दिन लग जाना चाहिए, रिसीविंग इस दिन हो जाना चाहिए, MO की शेड्यूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की शेड्यूलिंग ये है। जो भी आपके प्रोडक्शन के फ्लोर्स आप मैप करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ, मशीनिंग इस दिन से इस दिन तक, असेंबली इस दिन से इस दिन तक, पूरा एक आपको डिस्पैच पे रेडी कराएगा। बिल्कुल कैपेसिटी और एक प्लानिंग चार्ट बनाया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 90 डेज़ में ऑर्डर आता है तो 90 डेज़ के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और किस किस दिन के गैप में हो जाना चाहिए, कितने डेज़ के गैप में हो जाना चाहिए, उसके बेसिस पे ये आपको ब्रेक डाउन कर, तो आपका वॉल्यूम शिपमेंट होगा वो डिवाइड कर देगा। एंड द राइट साइड यू कैन सी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जनरली फैक्ट्री में सब डिफॉल्ट लोग होते हैं कि PO ये काटेगा, ये बंदा ये करेगा। एज आई सेड कि अगर डिफॉल्ट सेट है सिस्टम अपने आप उसको पॉपुलेट करता है। इफ यू वांट टू चेंज इट, यस यू कैन चेंज इट। बेस्ड ऑन दैट वन इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ स्कोर कार्ड फॉर ईच पर्सन एज वेल। स्कोर कार्ड में आपको दिखाएगा कि इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने कितने % फुलफिलमेंट किया, कितना डिले किया, कितना नहीं किया। हर पर्सन का आपका एक स्कोर कार्ड होगा। अगर आप इसका PMS यूज़ करते हैं पेरोल के थ्रू, पेरोल में ये आपका वो डेटा कास्ट करेगा कि एक्चुअल में इनका ओवर द पीरियड कितने % फुलफिलमेंट रहा। अगर हमने 2009 में भी किसी क्लाइंट को सर्व किया था, आज भी वो हमारा कस्टमर है। ये चीज़ें तभी हो सकती है जब हमने अपनी सर्विस पे कंट्रोल कर रखा है। Right. So I was talking about the PPIC. PPIC is a kind of, आप PPM इसको कह सकते हैं या प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल भी कह सकते हैं। इन्वेंट्री वर्ड इसलिए जोड़ा गया है प्राइमरली क्योंकि जो भी आपका पुराने आइटम्स शॉर्ट शिप हुए होंगे या फॉर एग्जांपल समटाइम्स एक्सपोर्टर्स हैव अ मल्टीपल लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री यहाँ पे है, दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे है, कई लोकेशंस होती हैं। सो ऑल द लोकेशंस यू कैन मैनेज इनटू दैट वन कि आपको ये आइटम किस लोकेशन में चलना है, चलाना है।
बेसिस ऑन दैट वन ये आपका जो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी उसको एनालिसिस करेगा, बताएगा कि इसका फुलफिलमेंट कितने % हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपको क्या मंगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है इंपोर्टेड फैब्रिक्स होते हैं या इंपोर्टेड आइटम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता है कि आज हम ऑर्डर देंगे और उसका वो हमें 60 दिन से पहले नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल इट विल बार्ड यू कि आप ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका वो आइटम नहीं आए। ये भी चीज़ है, लीड डेज बेसिस पे आप पे कर सकते हैं। एंड इट हैज़ सम काइंड ऑफ ऑल प्रोसीजरल ओथ्स ऑल्सो कि फॉर एग्जांपल मैं PPIC कर रहा हूँ या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जब तक मैं एक काम नहीं करूँगा वो आगे नहीं बढ़ने देगा। यू कैन सी कि जब तक मैं चेक स्टॉक पे क्लिक नहीं करता वो मुझे आगे कुछ ऑप्शन नहीं करने देगा। इट्स अ काइंड ऑफ ओथ भी है इसके अंदर, ताकि आप एक प्रोसेस करें तभी आप एक आगे चलें। देन इनटू द PPIC you have divided your product into the डिफरेंट सेक्शंस कि आपको परचेज ऑर्डर काटना है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर काटना है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। कंपोनेंट्स का भी आप प्लान कर सकते हैं। सो इट्स अ डिटेल प्लानिंग बेसिकली, एंड बेसिस ऑन दैट वन जैसे ही आप उस प्लानिंग को कंफर्म करते हैं, सिस्टम आपको एक बजट बना के दे देता है कि इस ऑर्डर के फुलफिलमेंट में आपको इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ने वाली है, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ आप उसको कम्युलेट करेंगे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, तो आपका फंड फॉरकास्टिंग आ जाता है कि एक्चुअल में मुझे इतने फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है ऑर्डर के फुलफिलमेंट के लिए। बाकी गवर्नमेंट ने हमें दे ही रखा है कि हम उसके करस्पॉन्डिंग लोन ले सकते हैं। ओके, राइट। सो मैंने यहाँ तक डिफाइन किया हुआ है PPIC एंड टाइम एंड एक्शन प्लान। बॉम एंड राउटिंग जो कि मैंने डिफाइन किया था आपको प्रोडक्ट डेफिनेशन के साथ। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसका पूरा एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको एक सारन दिखाया था फेयर मैनेजमेंट के लिए। सिस्टम हैज़ अ कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ मात्रा, जिसको आप प्रोडक्शन फ्लोर पे मैनेज करेंगे। ये ऐप आपका एंड्रॉयड या आईफोन दोनों जगह चलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपका पूरा ERP आपके ऐप पे चल रहा है, आप देखेंगे सबसे पहले सेल्स ऑर्डर का सेक्शन है। सेल्स ऑर्डर हैज़ सम काइंड ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर्स। मैं PI डाल सकता हूँ बट मेरा मैनेजर उसको सिर्फ अप्रूव कर सकता है। द अप्रूवल इज़ अगेन विद द एप्लीकेशन। इट हैज़ अ परचेज ऑर्डर सेक्शन एज वेल। अगेन फॉर द परचेज ऑर्डर कोई भी बंदा परचेज हो सकता है, डाल सकता है, बीट कर सकता है, बट अप्रूवल यू कैन मेक थ्रू द सिस्टम, सॉरी थ्रू द ऐप इटसेल्फ। अब इसमें देखेंगे अलग अलग सेक्शंस इसके बने हुए हैं। गेट एक्टिविटी, शिपिंग, रिपोर्टिंग, सैंडिंग, पॉलिश, फिटिंग, पैकिंग, कम चीज़ें हैं। जितने भी आपके फैक्ट्री के अंदर फ्लोर्स हैं, सारे फ्लोर्स आप उसको मैप कर सकते हैं इसी के थ्रू। नाउ ये वर्क कैसे करेगा? जैसे ऑर्डर आया, ऑर्डर से 2 पैरेलल फ्लो चल सकते हैं। पहला, आपने किसी वेंडर से कुछ परचेज़ किया, उसके अंदर फिर जब फैक्ट्री में आया कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आपने पैक किया, एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा एक चेन आपका चल सकता है कि आपने खुद प्रोडक्शन किया, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से मंगाए या कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की और उसको पैक किया और आगे बढ़ गए, डिस्पैच कर दिया। हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये ऐप आपका efficiently scan through the scanning of the goods और through the barcode scanners ये आपका वर्कआउट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया सिस्टम से, आपके गुड्स जैसे ही रिसीव होने होंगे, हर परचेज ऑर्डर में सिस्टम एक QR कोड प्रिंट करके देता है। आपका आइटम जैसे आया, हमें सिर्फ वेंडर को ये एजुकेट करना है कि भाई जो भी आप मेरा आइटम डिस्पैच करोगे उसके साथ मेरे PO की कॉपी भेजिएगा। आपका गार्ड जो बैठा हुआ है उसने स्कैनर खोला और जैसे ही वो उसको स्कैन करेगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी आइटम्स लिस्ट होंगी, सिस्टम अपने आप उसको पॉपुलेट कर देगा। ठीक इसी तरीके से जो आपके फ्लोर ऑपरेशन भी चल रहे होंगे, हमने हर ऑपरेशन के लिए
QR स्कैनर्स, डिफरेंट कलर्स के QR कोड्स यूज़ किए हुए हैं। इट इज़ समथिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलिशिंग का फ्लोर है, पॉलिशिंग के फ्लोर पे 4 मेजर एक्टिविटीज़ शेड्यूल की गई हैं। जैसे पहला कि कोई भी काम होता है उसके लिए पहला उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिश का ही एक फ्लोर ओपन करता हूँ, राइट। लेट्स सपोज मैं पॉलिश का सुपरवाइज़र हूँ। हमने पॉलिश के फ्लोर पे रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के स्कैनर्स, बारकोड्स लगाए हुए हैं। सुपरवाइज़र मॉर्निंग में आया, उसने नीले रंग का QR कोड स्कैन किया। जैसे स्कैन करेगा इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स जिस पे उसको प्रोसेसिंग करनी है। उसने किसी एक को सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे मेरा न्यू था, जैसे ये मेरा न्यू है, मैंने इसको ओपन किया, उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं काम करूँगा इस पर। इसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं, मैंने प्रोसेस चेक किए कि इसको पॉलिश या आइटम को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे कितने प्रोसेस हैं। अगर मैंने उसको चेक करके ओके कहा, सिस्टम ने अंदर जितनी भी मेरी टीम्स काम कर रही हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उसके लिए एक एलोकेशन लेटर बनाया कि ठीक है भाई एक पीस पे काम करना है, और जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम सेलेक्ट किया, कौन सा सुपरवाइज़र है वो सेलेक्ट किया और उसको एक जॉब ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसने उसको जॉब ऑर्डर प्लेस किया। जैसे ही जॉब ऑर्डर वो प्लेस करेगा उसका सिस्टम एक एलोकेशन लेटर बना देगा। एलोकेशन लेटर बनाते ही उस टीम को क्या चीज़ की वर्किंग करनी है, उस वर्किंग के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए सिस्टम अपने आप एक रिक्विजिशन स्लिप जनरेट करके स्टोर डिपार्टमेंट को भेज देगा कि X पर्सन आएंगे, आप उनको ये मटेरियल इशू कर दीजिएगा। जब वो मटेरियल इशू हो जाएगा उस पर काम होगा और वो अगेन जैसे ही उस पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं सिस्टम सेम आइटम को प्रोसेस कर देगा क्वालिटी के लिए। तो लेट्स सपोज मैंने इसको एलोकेशन दिया, एक प्लेस पे मैंने कोई AB क्राफ्ट हैं उनका एक एलोकेशन लेटर प्लेस किया जो कि 11 या 11 तारीख तक काम करके मुझे दे देंगे। जैसे ही ये लेटर यहाँ पे पहुँचेगा, ये देखिए अपने आप एलोकेशन लेटर्स बने। एलोकेशन इज अ काइंड ऑफ जॉब ऑर्डर्स। सिस्टम जो आपके जॉब ऑर्डर्स है वो ऑटोमेटिकली प्लेस करता हुआ चला जाएगा, आपको मैनुअली कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम का जो मूवमेंट है या प्रोडक्ट का जो मूवमेंट है वो एक मूवमेंट चालान या मूवमेंट स्लिप के थ्रू सिस्टम अपने आप उसको आगे आगे मूव करता रहेगा। ये देखिए जैसे आर्यन टूल ने काम करना स्टार्ट किया, उसने एक रिक्विजिशन जनरेट की, रिक्विजिशन स्लिप अपने आप स्टोर में जाएगी। स्टोर में जाने के बाद आपका मटेरियल इशू होगा। फ्लोर ऑपरेशन, इट हैज़ अ एलोकेशंस, इट हैज़ अ रिक्विजिशंस, इट हैज़ अ सब प्रोसेस जो मैंने प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे बनाए थे। इट हैज़ अ क्वालिटी ऑपरेशन। क्वालिटी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि जैसे QC जब मैं प्रोडक्ट डिफ़ाइन करा था वहाँ पे आपने देखा था चेकलिस्ट थी प्रोडक्ट की, वो सारी चेकलिस्ट आपको क्वालिटी के फ्लोर पे प्रिंटेड मिलेंगी और आपका QC जो होगा वो उसको पास कर सकता है, फेल कर सकता है या रीवर्क के लिए ऑपरेशन डाल सकता है। ये आपको सिस्टम आपको प्रॉपर एक रूट कॉज एनालिसिस निकाल के देगा कि किस प्रोडक्ट में किस वजह से कितना रिजेक्शन हुआ, किसके कौन सुपरवाइज़र था जिसकी वजह से रिजेक्शन हो रहा है या रीवर्क हो रहा है। इट विल गिव यू द कंप्लीट रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट ऑल्सो, ताकि आप फैक्ट्री की जो भी स्किल सेट पे हैं वो उस पर आप काम कर सकें। और अगेन जैसे ही जो भी आपका पास काम होगा, जितना भी क्वालिटी ओके होगी, सिस्टम आप मटेरियल मूवमेंट नोट जनरेट करेंगे एंड इट विल सेंड टू द नेक्स्ट फ्लोर। जो भी आपने राउटिंग डिफाइन की होगी पॉलिश के बाद, जैसे सपोज आपका फिटिंग है या पैकिंग है, वो उस फ्लोर को अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। जो भी आपके फ्लोर ऑपरेशंस हैं वो आपके कम्प्लीटली ऑटोमेटेड हैं। QC को डालना पड़ेगा, मैं बोलूँगा करना पड़ेगा सिस्टम के थ्रू। सिस्टम अब वहाँ पे एक चैलेंज क्या रहता है कि हम सुपरवाइजर्स को बोलते हैं कि भाई जितना भी काम किया हो वो एंट्री करना, राइट। इसका उल्टा है कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र से जिसको भी काम कराना है
वो ऐप के थ्रू आप उसको स्कैन करके आगे बढ़ा देना। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सर सुपरवाइज़र है, इनके पास आया कि भाई 50 पीस आपको लक्ष्मण से काम कराने हैं, मेरा नाम चढ़ा दिया 50 पीस। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं डॉक्यूमेंट जाऊँ, मैं जॉब ऑर्डर मैनुअली क्रिएट करूँ और एंट्री करूँ, ये ऑपरेशन नहीं है। डेफिनेटली जॉब ऑर्डर सिस्टम ने अपने आप प्लेस कर दिए, सिर्फ ये मुझे एलोकेट करना है, दैट इज देयर। तो ये आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो गया। कि अभी क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई लोगों से कि एंट्री करके मुझे देना, या आज दिन में जो काम हुआ है वो मुझे शाम को दे देना, रादर देन ये इसलिए है क्योंकि अंदर फ्लोर पे या तो कंप्यूटर्स लगे होंगे, ठीक है, उसका मूवमेंट इतना इजी नहीं रह सकता। आज अगर सुपरवाइजर का काम है कि वो फ्लोर पे काम कराए तो उसका पहला सेंटर तो ये होगा कि वो सही ढंग से काम कराए, एंट्री तो बाद में देखेगा। अब हमने क्या किया, ऐप के थ्रू उसको इनेबल किया कि आप इसमें क्लिक कर दो तो अपने आप ये जॉब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है, ये वाला आइटम जहाँ पे मेरा माउस है, ये एक सिस्टम ने जॉब ऑर्डर अपने आप प्लेस किया है, वर्क ऑर्डर अपने आप प्लेस किया हुआ। यहाँ पे एक पीस का है, आपके 50, 100, 1000 जितने भी कुछ भी पीस हो सकते हैं, राइट। ये डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट आपको सिस्टम करके दे रहा है, क्योंकि मैंने जब प्लानिंग की कि भाई इसमें ये काम होना है तो सिस्टम ने अपने आप एक जॉब ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक पॉलिश का फ्लोर का या किसी भी फ्लोर का एक सुपरवाइज़र है, उसको क्या काम करना है ये उसको कैसे पता चलता है। आपने जब प्लानिंग की थी, सिस्टम ने उसको एक्यूमुलेट कर लिया, अब वो गया, उसने ऐप से देखा या उसने QR कोड स्कैन किया, तो ये जो लिस्ट है बेसिकली वो उसके सामने ओपन हो गई कि ठीक है मुझे 5 आइटम है जिस पे काम करना है, राइट। दिस इज़ द वन प्रोसेस। अब उसने एक ओपन किया, ओपन करके वो क्या कर रहा है, जैसे ये है, उसने ये बटन प्रेस किया, जैसे ही वो बटन प्रेस करेगा उसके पास क्वांटिटी आ गई 2 अपने आप। उसने सिर्फ क्या किया, मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया, ये। सो ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री हो रही है, बट उसको उस प्रोसेस को स्मूथ कर दिया गया। आपको जॉब ऑर्डर क्रिएट नहीं करने हैं, प्री डिफाइंड या प्री क्रिएटेड जॉब ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, उस क्रिएशन में आपको नाम सेलेक्ट करना है, ये है। या समटाइम्स फॉर एग्जांपल होगा 100 पीस का ऑर्डर होगा, आप मल्टीपल लोगों को डिवाइड कर सकते होंगे, तो ये आपको मल्टीपल लोगों को डिवाइड करना होगा। तो एंट्री की जगह प्रोसेस का मूवमेंट ऐप से किया गया है, ये इसमें, ताकि कल को कोई बंदा या सुपरवाइज़र या कोई भी छोड़ के भी चला जाता है तो हमने एक SOP लिख दी कि जब आपको देखना है कि क्या काम कराना है, आपने नीला वाला QR कोड स्कैन किया, क्या काम चल रहा है आपने हरे वाले QR कोड स्कैन किया। तो स्कैनिंग द आइटम विल इनेबल कि आपको जो ट्रेनिंग एफर्ट है वो आपका रिड्यूस हो गया। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे हमने वेंडर को बोला कि भाई अपना जब भी आप मेरा माल डिलीवर करोगे आप मेरा परचेज ऑर्डर दोगे, परचेज ऑर्डर में QR कोड है। गार्ड तो मेरे रोज़ चेंज होते रहेंगे, बट मैंने लगा दिया कि भाई कोई भी गार्ड हो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्कैनर आप ऐप स्कैनर के लिए, जैसे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये हम लोगों ने अभी जब EPCH में फेयर था लाइव किया था, मैंने ऐप के थ्रू प्रोडक्ट उठाया, स्कैन किया, ये मेरे पास फिनिश आइडेंटिफिकेशन के लिए है, इसने मुझे दिया कि इसके अंदर कौन सी फिनिश है। ये देखिए, इसने एक प्रोडक्ट को स्कैन किया, उसका एक बटन था फिनिश आइडेंटिफिकेशन। वो एनालाइज करेगा कि प्रोडक्ट के अंदर कौन सी फिनिश यूज़ की गई है और कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। बेस्ड ऑन दैट वन ये आपको आउटपुट देगा एक्चुअल में कि कौन सी फिनिश आई है। The product appeared to have a dark metallic finish, possibly with a slightly distressed और एंटीक लुक। ये लाइव था बेसिकली, जो हम लोगों ने अभी EPCH का फेयर था उसमें ये लाइव चलाया था टेस्ट करने के लिए। और ये प्रॉपर परफेक्टली आपको फिनिश और
प्रोडक्ट का कंपोजिशन निकाल के देगा, ताकि आपका जो QC है उसके लिए काम आसान हो जाए। अगेन पूरे सिस्टम में जो आपका एंट्री पॉइंट है वो आपके प्रोडक्ट का डेटा है और आपका बायर का ऑर्डर है। जैसे ही आप ऑर्डर डालते हैं सिस्टम प्लानिंग एग्जीक्यूट करता है और उसके बेसिस पे डिफरेंट मटेरियल्स जितने भी होंगे परचेज ऑप्शन ओपन करेगा। आपको फिनिश्ड आइटम मंगाना है, आपको उसके कंपोनेंट ऑर्डर्स करने हैं, आपको बॉम ऑर्डर्स करने हैं, आपको बॉक्स मंगाना है, आपको वुड वगैरह मंगाना है, या आपको जॉब वर्क करना है, जितने भी आपके परचेज टाइप के क्लासिफिकेशंस होंगे ये आपको ओपन करके रखेगा और उसके बेसिस पे आप अलग अलग लोगों को एक्सेस राइट दे सकते हैं। जो आपका परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर पूरा एक ऑडिटेड प्रोसेस है। आपने किसी को परचेज ऑर्डर दिया, जब वो आपका मटेरियल डिलीवरी हुई, उसका आपने रिसीव किया, तो बेसिकली गेट एंट्री बनी, GIN जिसको हम कहते हैं। देन GIN के बेसिस पे वो एक मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाएगा और अपने आप अकाउंटिंग टीम को इन्फॉर्म करेगा कि कितना आइटम आपका रिसीव हुआ है। सिस्टम हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द पेमेंट साइड। कि फॉर एग्जांपल आपने 100 पीस का आइटम काटा था, 100 पीस का ऑर्डर काटा था, आपकी रिसीविंग 90 की हुई है, सिस्टम विल मेक श्योर कि पेमेंट हमेशा 90 का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं करने देंगे। सो दोज काइंड ऑफ ट्रिक्स इज देयर जो कि आपको टैली या दूसरे अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर आपका वेंडर किसी TDS के सेक्शन में आ रहा होगा, ऑटोमेटेड TDS कैलकुलेशन, पुराना अगर उसका कोई TDS का ड्यूज़ है वो सब आपको अकाउंटिंग में बिल्ड करके रखें। ये चीज़ें फॉर एग्जांपल वेंडर ने आपको बिल तो भेज दिया पूरा 100 पीस का, क्योंकि GST बिल है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप उस वेंडर का एक रेस्ट ऑफ द बैलेंस पीसेस का एक डेबिट नोट प्लेस करेगा, जिसके बेसिस पे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो आपका पेमेंट है वो स्ट्रिक्टली, चाहे वो आपके वेंडर हों, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्टर हों, सबके लिए बांट करके रखता है। जो प्रोसेस कंट्रोलिंग है वो आपको और किसी सॉफ्टवेयर में शायद नहीं मिलेगी, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट के। राइट, मैं इसमें आता हूँ। वेयर हाउस मैनेजमेंट, बॉम एंड राउटिंग की हमने बात की। वेयर हाउस मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज, लेट्स सपोज यू हैव अ मल्टीपल काइंड ऑफ warehouses or multiple locations of the factory. You can manage n number of warehouses, n number of locations. जो भी आपकी प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी होगी, it will give you the complete traceability of the product. किस समय किससे आया, कितना कंज्यूम हुआ, कहाँ कहाँ गया, किस किस फ्लोर पे गया, जैसे स्टिचिंग में कहाँ पे है, स्टिचिंग के बाद अगर वो वॉशिंग पे गया या पैकिंग पे गया, it will give you the complete traceability at any point of time. आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट का आपको बता देगा। देखिए जैसे मैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक कोई आइटम है, एक बेड है। आप देखेंगे कि कितनी प्राइस लिस्टिंग बनी हुई है, कितना ऑन हैंड है, कितना फॉरकास्टेड है, बिल ऑफ मटेरियल मैंने कितना डिफाइन किया हुआ है। इसके अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कैड, कैम्प, कुछ भी जो भी है आप वो अपलोड कर सकते हैं। आज तक कितना परचेज हुआ है, कितना सोल्ड हुआ है। रीऑर्डरिंग रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्टॉक आइटम्स के लिए मिनिमम मैक्सिमम आप डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम विल जनरेट अ काइंड ऑफ लिस्ट कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अंडर स्टॉक है। इन एंड आउट, कितनी बार इन हुआ, कितनी बार आउट हुआ। अगर पुट अवे रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे इन एंड आउट अगेन एज ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किस वेंडर से आपका अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, किस डेट के लिए, कितने रेट के लिए, ये आप डाल के रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर मैंने इसको डाला कि 4200 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है, इट विल रिस्ट्रिक्ट योर परचेज डिपार्टमेंट की 4200 से ज़्यादा का परचेज नहीं बनाने देगा। सो दोज थिंग्स इज देयर इनटू द प्रोडक्ट मास्टर्स। जैसे मैं कस्टमर मास्टर भी दिखाता हूँ आपको, कस्टमर या वेंडर मास्टर। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे उस कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्ड है ये आपको वहीं पे दिखाता रहेगा। आपको कहीं भी सर्च या एक्शंस आपको नहीं देखने पड़ेंगे। अगर यही मेरा वेंडर होता तो वेंडर का क्या परफॉर्मेंस है, कितनी ऑन टाइम डिलीवरीज उसने आज तक दी हैं, तो सारा उसका परफॉर्मेंस यहीं से दिखा रहा होगा। आपको कहीं भी सर्च नहीं करना,
द सिस्टम इज इक्विप्ड विद द GST पोर्टल. आपके ई-इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स यहीं से जनरेट होने हैं. वी आर वर्किंग एट द मोमेंट विद द GST रिकन्सिलेशन. होपफुली विल डू दैट एज वेल. आपका रिकन्सिलेशन भी GST इसी से होगा. MSME आपके रिटर्न्स हैं, आपके ITC 04 हैं, जितने भी आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंसेस की रिपोर्ट्स होंगी इसके अंदर आपको मिलेंगी, प्री बिल्ड मिलेंगी, आपको कहीं और देखना नहीं पड़ेगा. जैसे जियो लोकेशंस वगैरह हो गए. टिम्बर परचेज के लिए EUDR ने जो अभी निकाला था कि हमें एक ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, उसके गूगल कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको निकाल के देता है. इफ़ यू हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रज सर्टिफिकेट के लिए ये आपको कंप्लीट फॉर्म ए फॉर्म बी उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल देगा. वी आर वर्किंग विद FSC फॉर द FSC वुड ऑल्सो. उससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे इट विल जनरेट इनटू दिस सिस्टम ऑल्सो. ये काइंड ऑफ होलसेल सिस्टम है जहाँ पे हर तरीके की चीज़ें आपको प्री बिल्ड मिलेंगी. आपको कहीं भी किसी भी तरीके का मैनुअल या अलग से सॉफ्टवेयर या एक्सेल यूज़ नहीं करने की जरूरत. वेयर हाउस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम. अगेन आपका स्टॉक वैल्यूएशन या जो आपको बैंक को ओपनिंग क्लोजिंग रिपोर्ट्स देनी होती है या स्टॉक वैल्यूएशन देना होता है, विल गिव यू दैट ऑल्सो. जो भी आपका स्टॉक एजिंग है, कौन सा रिपोर्ट, कौन सा स्टॉक आपका कितने दिन तक पड़ा हुआ है, उसका रीयूजेबिलिटी क्या है, हुआ है नहीं हुआ है, इट विल गिव यू द दैट एज वेल. ये भी आपको निकाल के देगा स्टॉक एजिंग. परचेज ऑर्डर जो मैंने आपको एक ऐसी ब्रीफ किया, ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम है इसका. सो ऑटोमेटेड बिलिंग वी आर कंसिडरिंग एज ए 2 टाइप्स. जो हम वेंडर की बात कर रहे थे कि पेमेंट कंट्रोल किया गया है बेसिस ऑन द रिसीविंग ऑफ द गुड्स. सेम फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल. कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपका फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसका पेमेंट आप जो भी आप मॉडल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन शिपमेंट बेसिस, ये ऑटोमेटिकली उसकी क्रेडिट की लाइन बनाएगा. जैसे मैं पॉलिश के फ्लोर का एग्जांपल ले रहा था. मान लीजिए मैं एक सुपरवाइजर, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने 50 पीस काम किए. सिस्टम अपने आप 50 पीस का एक क्रेडिट लाइन बना के रख देगा. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप बिल मंथली बनाना चाहते हैं या 15 दिन में बनाना चाहते हैं या अमावस के दिन बनाना चाहते हैं, जैसे भी उसके बेसिस पे बिल बनाइए, TDS डालिए और पेमेंट करिए. Budgeting is there. So basis on the planning, it will give you the fund forecasting. ये जो नीचे अकाउंटिंग वाला नहीं अभी हम पे किसी भी उसका नीचे जैसे मान लो ये मेरा कोई वेंडर जो है ना, तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी तो नोट्स के लिए. सो अकाउंटिंग में इसके एट्रीब्यूट्स सेट किए गए हैं कि इसका, इस वेंडर का या इस कस्टमर का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर क्या है और इनवाइसिंग पॉलिसी क्या है. ये मेरे इनवाइस में या लेजर में किस हेड को हिट करेगा. मास्टर के, ये मास्टर. तो जैसे ड्यू रिपोर्ट्स होती हैं, आपका वेंडर का कितना ड्यू है, कितना क्या है, वो चीज़ें आपको निकाल के दे देगा. और कस्टमर साइड से आप चाहोगे तो उसको मेल भी कर देगा कि आपको पैसे ड्यू रहेगा. ये भी चीज़. जैसे मैं आपको ऐसे ही अकाउंटिंग दिखाता हूँ. जैसे कस्टमर इनवाइसेस को भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट का है, डोमेस्टिक का है, या B2B है, B2C है, जैसा भी आप चाहेंगे कन्फिगर हो जाता है. वेंडर बिल्स वगैरह आप जैसे अपलोड करेंगे आपको इनवाइस वगैरह खुद क्रिएट कर देगा, आपको मैनुअली नहीं क्रिएट करना पड़ेगा. ये फीचर है. क्रेडिट नोट्स, पेमेंट प्रोसीजर, चेक प्रिंटिंग, ये चीज़ें मिलेंगी. अगेन वेंडर साइड एज वेल, बिल्स बन गया, रिफंड्स हो गए. रिफंड अगेन इट्स अ काइंड ऑफ डेबिट नोट बेसिकली. उसके पेमेंट प्रोसेस हो गए और वेंडर का मास्टर हो गया. अकाउंटिंग में जाएंगे तो जनरल एंट्रीज, JBs जो आप मैनेज करते हैं, सेल जनरल, परचेज जनरल, बैंक एंड कैश, मिसलेनियस जनरल्स आप और भी बना सकते हैं. ऐसे लेजर्स हो गई, एसेट की एंट्रीज हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, कैश रजिस्टर्स हो गए. रिपोर्टिंग पे अगर देखें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर लेजर, एज बैलेंस, एज रिसीवेबल, एज पेबल कितना है,
ऑडिटर को आप एक्सेस देंगे आपका सिस्टम ऑडिट करने के लिए। जनरल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, टैक्स रिपोर्ट हो गई, जनरल ऑडिट्स हैं, आपकी डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। जैसे अभी इसमें जीएसटी की रिपोर्ट्स नहीं दिख रही हैं, तो आपको मैं दूसरा एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जीएसटी में 2B, B2B, CL, CS, HSN, एक्सपोर्ट की, MIS की और भी रिपोर्ट्स आपको दी जाती हैं। ITC 4 हो गया, जितनी भी आपकी बैंक की जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, या सो बेसिकली अकाउंटिंग आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। इनवाइसिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। सो इट हैज़ कंप्लीट इनवाइसिंग है इसके अंदर, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है और फाइनेंस एनालिसिस भी है। बजट और एसेट की इंक्रीज भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स हो गए वो मैनेज कर सकते हैं, ऑटो डेप्रिसिएशन के रूल्स लगा सकते हैं। सो अगेन, अगर आपका जैसे टैली है, टैली कैन यूज़ बाय द अकाउंटेंट, मैं नहीं यूज़ कर सकता। ये सॉफ्टवेयर आप खुद यूज़ कर सकते हैं, ये एक फ़र्क है। टैली इज़ डेफिनेटली वंडरफुल सॉफ्टवेयर फॉर द अकाउंटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि तो सारे हैंडल्ड सब कुछ पढ़ा लिखा है सब। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप खुद बता सकते हैं कि आपके ड्यूज़ कितने हैं, वेंडर का ड्यूज़ कितना है। अभी आपको निकालना है या पूछना है तो आप क्या करते हैं, अकाउंटेंट से पूछते हैं कि भाई लिस्ट लेके आ, दिखा क्या क्या पेंडिंग है। विद दिस सॉफ्टवेयर आप इसको खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस इस तरीके से बनाया गया है। आपके कमर्शियल इनवॉइसेस, आपकी स्टफिंग पैक, जैसे इसका जो ऐप है मोबाइल एप्लीकेशन, वो स्टफिंग में आपको हेल्प आउट करता है। जैसे ही आपका लॉजिस्टिक का बंदा एक पैकिंग लिस्ट बना के जाएगा, उसको क्या करेगा, ऐप में सारे कार्टन को ड्रॉ कर देगा ऐप के थ्रू, और रियल टाइम पे आपका स्टफर उसको ओपन करके एक्चुअल में स्टफिंग रियल टाइम पे कर सकता है। जैसे ही ले सपोज कोई आपका कार्टन शॉर्टलिस्ट हुआ या कुछ हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली उस इनवॉइस को अमेंड करता है, जिसके बेसिस पे आप इनवॉइस या अपने आप निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टफर लॉजिस्टिक का बंदा इनवॉइस बना के जाता है, स्टफिंग रात में हो रही होती है, वो नहीं रुकता है, फिर आपका कंटेनर या तो खड़ा रहता है जब तक कि इनवॉइस वहाँ से वैलिडेट होगी, ई वे बिल न मिले। तो दिस एप्लीकेशन ये आपको ई वे बिल वहीं से जनरेट करके देगा, और जो आपका कंटेनर स्टफिंग की पूरी एक जो आप CHA को भेजते हो, लेफ्ट राइट और फ्रंट कंटेनर की जो इमेजेस वगैरह होती है उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और वो आपको भेज देगा। बेसिकली ये आपका शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन या शिपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, मैंने देखा है लोग महीने में 100 कंटेनर्स बना रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक बंदा पूरा शिपिंग डिपार्टमेंट मैनेज करता है। बहुत एग्जाम्पल हैं, तो इनको मैं जानता हूँ, वो 100 कंटेनर एक महीने में भेज रहे हैं और एक बंदा सिर्फ उनका शिपिंग पूरा मैनेज करता है, कोई अलग से बंदा रख नहीं रखा है। ऑर्डर्स प्लेस होने हैं, वो सारी चीज़ें आपके फ्लोर ऑपरेशंस में होती हैं। फ्लोर ऑपरेशन में मेजरली आपको ये देता है वर्क एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपके सुपरवाइजर की क्या परफॉर्मेंस है उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके देगा। आपके वर्कर या वर्कर इंडिविजुअल टीम की बेसिकली, आई वुड से कॉन्ट्रैक्टर का जो भी आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या रिजेक्शन रिवर्क किस हिसाब से हुआ है, उसकी प्रॉपर एक आपको रिपोर्ट निकाल के देता है हर फ्लोर वाइज। फ्लोर मैनेजमेंट में मेजरली यही चीज़ें हम लोग कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ अ डिटेल मशीन मेंटेनेंस मॉड्यूल है। हमारे फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीन्स हैं, एसेट में हमने डिफाइन किया होगा, उसका जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, जो आप ऑडिट में भी यूज़ करते होंगे रिपोर्ट वगैरह, वो सब आपको इसी से निकाल के देगा। पार्ट ऑफ दैट कि आपने मेंटेनेंस के हेड में टोटल कितना खर्चा किया है, व्हाट द पीरियड इट विल गिव एट। क्वालिटी एंड असेसमेंट या टॉकिंग अबाउट की रूट कॉज एनालिसिस निकाल के देता है। मास्टर ट्रैकिंग हो गई, QC की ट्रैकिंग हो गई, जैसे जैसे जितनी भी चीज़ें क्वालिटी से रिलेटेड रहती हैं, एक प्रॉपर आपका QC का पूरा मॉड्यूल है। सो बेसिकली वी हैव while serving with a different quality and buying houses, whatever we learn कि उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किया है। जैसे कई बायर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके सेट ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर वो इक्वल में जा रहे हैं तो उनके किस हिसाब से वो लेते हैं, चाहे हार्ड गुड्स हो, सॉफ्ट गुड्स हो।
या गारमेंट है, टेक्सटाइल है, लेदर है, हर मटेरियल के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट आपकी QC को कैसे हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको QC का एक डैशबोर्ड है, मोबाइल में है इसलिए छोटा है, टैब में और अच्छा दिखता। मेजरली जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने ये कोई प्रोडक्ट उठाया, इस प्रोडक्ट का मुझे इंस्पेक्शन करना है। इस प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी देखिए प्री बिल्ड मिलेंगी। प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका लेंथ विड्थ हाइट क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, इक्वल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपके इंस्पेक्शन हेड्स क्या हैं, इफ़ इट हैज़ अ हार्डवेयर के अंदर क्या क्या है, जैसे मैंने लिखा हार्डवेयर ओके नॉट ओके, फिटिंग्स है, स्क्रैच है, सो इट हैज़ अ कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट ऑल्सो। तो आप अपनी चेकलिस्ट खुद बना सकते हैं। और जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, उसने इमेज खींची, अच्छा ये रिपोर्ट मैं चेक कर रहा हूँ, रियल टाइम बेसिस पे वीडियोस हो गए आपके या आपका फोटो हो गया, वो सब आप प्लेस करके रख सकते हैं। उसने अपने आप देखिए हेड्स बना दिए हैं आपके, इंस्पेक्शन इमेजेस, कंपैरिजन इमेजेस, आर्ट वर्क, ये सब चीज़ें। इन सब को करते हुए जब आप लास्ट में जाएंगे, ये आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल के देता है इस तरीके से। प्रोडक्ट का नाम हो गया, फ़ोटो हो गई, उसके पॉइंटर्स हो गए, उसके जितने भी हेड्स हैं या कीवर्ड्स जो आपने डाले होंगे, चेकलिस्ट, उसका इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद आपकी डिटेल एक्चुअल में इमेजेस हुई हैं, इंस्पेक्शन नहीं हुई है, ये सब एक प्रॉपर अंडर द क्वालिटी ऐप ये आपको निकाल के देगा। एंड दिस इज इंटीग्रेटेड विद दिस ERP सिस्टम। बहुत सारे बाइंग एजेंसीज इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बहुत डिटेल्ड वे में, नॉट ओनली इन इंडिया, वियतनाम या चाइना, वहाँ के बायर्स या QC भी इसको काम यूज ले रहे हैं। Then the last one, accounting and finance. So if I'm talking about the accounting and finance, majorly ये आपका GST enabled सॉफ्टवेयर है, कनेक्टेड होता है, आपके E-इनवाइस, E-वे बिल्स, MSME रिपोर्ट वगैरह ये यहीं से निकाल देता है। ऑडिट ट्रेल या जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो एक्चुअल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो फॉलो करता है, सारी चीज़ें आप इसी से निकाल सकते हैं। कुछ इसके की फीचर्स हैं, जैसे इफ़ यू हैव अ टिम्बर स्टॉक स्पेशली, उसके लिए पूरा एक मेजरमेंट का एक एप्लीकेशन है। जो भी मैं रॉ मटेरियल या टिम्बर उसका मेजरमेंट करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड वुड नापी करके एक हमारा एक ऐप चलता है, जो भी जैसे चूरू हो गया या राजस्थान में बहुत सारे टिम्बर हाउसेज हैं, वो वुड नापी का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की मेजरमेंट के लिए। अगर आप जानते हो तो जब मैं एक टिम्बर का मेजरमेंट करता हूँ तो एक बहुत एक पैटर्न चलता है, क्रॉस करके उसको क्रॉसिंग करता हूँ और नंबरिंग करता रहता हूँ। द सेम इट हैज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो, जो कि ये आपको इस तरीके का एक स्क्रीन बना के देगा, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की रिसीविंग रियल टाइम बेसिस पे करते रहेंगे। टिम्बर मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फर्नीचर इंडस्ट्री। तो वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप रियल टाइम बेसिस पे इसको मैनेज कर सकते हैं। सारम जिसकी मैंने बात की आपको, सारम इज़ अगेन अ फेयर मैनेजमेंट ऐप। बायोमेट्रिक मशीन की जितनी भी अटेंडेंस वगैरह होंगी ये इंटरलिंक कर देता है। इवन ESSL ने हमारे लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बना रखा है, जितनी भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उसका डेटा मैनेजमेंट ESSL खुद हमें करके देता है। अटेंडेंस हो गई, आपके एब्सेंटीज़ रिपोर्ट्स हो गई, आपके जो रिक्वायरमेंट होता है ऑडिट में, कंप्लायंस में, कि एक्चुअल में किस तरीके से मैनेज होती हैं कंप्लायंसेस की चीज़ें, दैट इट हैज़ अ डिटेल एक्चुअली दैट वन। इंस्पेक्शन है, GST है, बारकोड इनेबल्ड जो भी हमारे गेट एंट्री एंड ऑपरेशंस हैं, ये मेजर कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ हमने क्वालिटी कोड्स दे रखे हैं, आर्ट वर्सेस इज यूजिंग सो होल एंड सोल ये एक समरी था सॉफ्टवेयर का। यू हैव एनी चीज़ें हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो
ई कॉमर्स के जितने भी B2B इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आप इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई वगैरह, या आपकी अगर वेबसाइट है शॉपिफाई। नहीं, अगर जैसे आप मार्केट प्लेस कर रहे हो तो मार्केट प्लेस में कैसे करेंगे? मतलब मेरे पास वो तो ब्रिज कैसे करूँगा? क्या करूँ? इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, मतलब है कोई प्रीबिल्ट बना मिलेगा सर। अमेजॉन में आप अपनी यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे कि कनेक्ट कर देगा, मैप कर देगा प्रोडक्ट। अच्छा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ है, अच्छा, रेस्ट एपीआई बेस्ड पे जिससे भी आप चाहते हो कर सकते हो। वी हैव इंटीग्रेटेड पेपरफ्राई, वी हैव इंटीग्रेटेड जो आपकी कुरियर कंपनीज है फेडेक्स या ब्लू डार्ट, उसके साथ हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। वेबसाइट से भी integrate। शॉपिफाई कोई या कॉमर्स है, कोई वूकॉमर्स है, वर्डप्रेस है, कर सकते रिटेल कस्टमर्स को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे जैसे आपके स्टेप कंप्लीट होंगे। हैं। राइट, कैन वी गिव द एक्सेस? इट इज अ कस्टमर पोर्टल एंड इट इज अ वेंडर पोर्टल आल्सो। अगर कस्टमर को एक्सेस है, ईमेल्स तो भेजेगा ही, कस्टमर भी लॉगिन करके आपकी तरह देख सकता होगा कि परचेज का या किसी चीज़ का क्या स्टेटस है। जैसे देखिए मैं ऐसे एक स्टेटस दिखाता हूँ, इस पर पैकिंग पेंडिंग पे चल रहा है, दैट मीन्स पैकिंग के फ्लोर पे मैं और थोड़ा इलाज करता हूँ। विजिबल? सो आइटम वाइज ये आपको एक डैशबोर्ड पे दिख रहा होता है, दिख सकता है। सो यू कैन, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप अपने ऑफिस में या कहीं भी एक बड़ा सा टीवी लगाइए जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल में मूवमेंट क्या चल रहा है। इट्स लाइक दैट कि ये प्रोडक्ट मेरा पैकिंग पे चल रहा है, ये मेरा एमओ पेंडिंग है, ये मेरा पैकिंग पेंडिंग है, या मेरा ये प्लानिंग अभी तक नहीं हुआ है। एंड अगर मैं इसको और आगे ड्रिल डाउन करूंगा तो ये बहुत सारी और भी आगे फर्दर और रिपोर्ट देगा कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट का मूवमेंट किस फ्लोर से किस फ्लोर तक हुआ है या हो रहा है। पार्ट ऑफ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, मोर देन आई वुड से 200 काइंड ऑफ स्टैटिक रिपोर्ट्स आर देयर, यू कैन सी। मैंने आई कैन टॉक इन दिस सॉफ्टवेयर होल डे, मैंने उस पर नहीं किया। अब देखेंगे फ्लोर वाइज इनपुट आउटपुट, प्रोडक्ट वाइज ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या था, कंजप्शन कितना हुआ। सो अगेन आई मीन वी आर वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर सिंस 15 ईयर्स। 15 साल में बहुत तरीके की डेवलपमेंट्स, बहुत तरीके की चीज़ें बनाई हैं स्टैटिकली। तो आपको दिस सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू यूज़। आप फ्रॉम द डे वन से प्रोडक्ट का अपना डालिए और स्टार्ट कर सकते हैं। वो अलाउ नहीं करता होगा शॉपिफाई या इन चीज़ों को, इसको अलाउ करेगा। उसको सिर्फ अलाउ इन द सेंस अगर उसने अपनी एपीआई दे दी हमें, इट्स अ काइंड ऑफ ईडीआई इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल बायर के बहुत सारे ईडीआई प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्ले वगैरह, उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। द सेम आपका जो डोमेस्टिक कस्टमर है, बायर है, सॉरी B2B वाला जो प्लेटफॉर्म है, हाँ B2C का जो प्लेटफॉर्म है अमेजॉन की तरह, जिसमें अगर उसकी एपीआईज अवेलेबल हैं तो वी कैन B2C में भी कर सकते हैं। कितने एक लाइसेंस पे अगर इसका लाइसेंस कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं अगर B2C में करना है? कितने पोर्टल पे? जैसे मजेंटो में ही आप कर रहे हैं। ओके देखिए सर, जो आपका कस्टमर है, कस्टमर पोर्टल, कस्टमर इज नॉट ए यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर। कस्टमर तो बेसिकली एक पोर्टल एक्सेस दिया जाता है, वो यूजर रहेगा, लाइसेंस में काउंट ही नहीं किया। कस्टमर पोर्टल, कस्टमर इज नॉट अ यूजर। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी वेबसाइट है उसको इंटीग्रेट किया इससे, और कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है तो वो टिकट रेज करेगा फॉर एग्जांपल, या सर्विस या रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एज अ लाइसेंस काउंट नहीं होगा। कोई हम ऐसी चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने मजेंटो से इसको इंटीग्रेट कर लिया, मेरे पास एक ऑर्डर आता है और वो पैरेलल यहाँ से भी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैनेज यहाँ भी हो जाए। राइट राइट। एट एनी, मान लीजिए आप बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी आपका ऑर्डर आएगा, अगर इंटीग्रेटेड है डायरेक्टली ऑर्डर यहीं से किए मिलेगा। इंटीग्रेट विद मल्टीपल चैनल, जैसे गुलमोहर लेन हो गया या ऑरेंज ट्री हो गया, उनके साथ हम लोग काम करते हैं इन द बजट। नो वरीज की ये बहुत बड़ा नहीं है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड और लाइसेंस बेस्ड, पर लाइसेंस बेस्ड। अभी इसका लाइसेंस परपेचुअल बेसिस पे है, सिंगल इंस्टॉलेशन और वन टाइम यूजेस, लाइफ टाइम यूज करिए आप ऑन अ सिंगल लैप, ऑन अ सिंगल मशीन। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूजर्स। नो रिस्ट्रिक्शन। सो बेसिकली व्हाई इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूजर्स, क्योंकि DB सर्वर आपका है, डेटाबेस आप खर्च कर रहे हो ना, उसके आप क्लाउड को पे करोगे या तो AWS में रखोगे या खुद का सर्वर रखोगे, तो लोड एक्चुअली में उस तो पर है। इसमें भी ऐसे सिस्टम होता है कि
I'm having sibling systems in the company जो 15 के हिसाब से है आपके तो वेब पर है, वेब पे क्लाउड पे क्लाउड पे कर सकते यूजर आईडी पासवर्ड डेटा अपने पास नहीं है। हैं। हाँ, डेटा आपके पास। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, आपको एक इंटरमीडिएट ब्रिज दे रहा है अपने डेटा के साथ वो कनेक्ट। AWS का चार्ज आपको तो पे करना नहीं है, वो क्लाउड का वो सीधा AWS या गूगल को पे करना हाँ, वो डायरेक्टली आपको। मतलब होस्टिंग मुझे लेनी है और अपना डेटाबेस, क्योंकि वो वैसे भी क्योंकि सारी प्रोडक्ट प्राइसिंग है, सैम्पलिंग है, सब चीज़ें हैं, बाहर इन्फॉर्मेशन है वो तो। बिल्कुल सर। आप AWS यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल ओशन यूज़ कर सकते हैं, Azure यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी क्लाउड की कंपनीज आप देती है हमारा एक्सपोर्टर्स को कि जिससे हमारा एक्सपोर्ट ग्रो करे, और उसी में से 94 से हम ये कर रहे हैं। और अबाउट आज के डेट में हमारे 10,000 प्लस मेंबर्स हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जैसे IGF दिल्ली के सभी जानते हैं वो वन स्टॉप सर्चिंग शो डेस्टिनेशन है बेसिकली, जिसमें हमारा हैंडी का पूरा कवर किया है। तो इसी तरह हम इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी शो कर रहे हैं, जो है हमारा ज्वेलरी का सेक्टर। तो जैसे थोड़ा सा हाँ, तो बेसिकली इफ्जाज जो है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे इस सेगमेंट में है। जो भी लोग हमारे यहाँ पर इस सेगमेंट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा शो है। जो पिछले हम 18 हम इवेंट कर चुके ही हैं, और ये 19 शो है। 16th हमने फिजिकल किए थे, 2 बीच में हमारा जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे हमने 2 वर्चुअल भी किए थे। तो 18 शोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 19 शो है। और ये अभी जैसे मैंने बताया कि 4 to 6 जुलाई इसकी डेट है, और इसमें जो ओवरसीज बायर्स और उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे उनके बाइक एजेंट हैं, चाहे उनके और भी जो यहाँ ऑफिस हैं, वो यहाँ पर इस शो में पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें मीन्स विजिट करते हैं। ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट है हमारा इस शो का, जिसमें हम फैशन ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरी, बैग्स, टूल्स, वुमेन मेंस अपैरल्स, लेदर बैग्स, फैशन फैब्रिक्स और हेयर के अभी हमने जो इस बार जोड़ा है वो हेयर केयर, फुटवेयर और आई वेयर और वॉचेस एंड एक्सेसरीज, इसको एक हमने एडिशनली जोड़ा इस बार, क्योंकि कुछ बायर्स की रिक्वायरमेंट थी कि हम इसके साथ इनको भी ऐड करेंगे। तो इस बार हमने कोशिश की कि उसको भी हम ऐड करते हैं। ये कुछ हमारे इमिटेशन फैशन ज्वेलरी है। बैग्स में काफ़ी तरह के बैग्स आते हैं हमारे, फैशन बैग्स हैं, पोटलीज होती हैं, क्लचर्स वगैरह, इस तरह कई बैग इसमें हम कवर करते हैं। शॉल्स, स्कार्फ, स्टोल्स ये हैं, कभी काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। हैंडमेड अटायर्स, जैसे अब हमारी ड्रेसेस हैं उसमें हमारा जितना हम हैंडमेड वर्क करते हैं वो हो गया। ड्रेसेस हो गया, आर्टिकल जैसे हमारे बेसिकली ये ऑर्गेनाइजर टाइप के हो गए जो हमारे ज्वेलरीज वगैरह रखने के लिए। और लेदर बैग्स, एसेसरीज हैं, फुटवेयर है, बैग्स है, आईवेयर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस बार हम ये ऐड कर रहे हैं, इस बार आईवेयर वॉचेस एंड एसेसरीज, हेयर केयर एसेसरीज। और जो इसमें विजिटर प्रोफाइल है वो है इसमें मैक्सिमम चेन स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, डिज़ाइनर्स, मर्चेंडाइजर्स, फोरकास्टर्स, डोमेस्टिक वॉल्यूम बायर्स, बाइंग हाउसेस, ये सारे इस शो में विजिट करते हैं। और बेसिकली इसका एक हमारा जो फीचर रहता है जो शो के अंदर, जिसमें ट्रेंड फॉरकास्ट एक थीम रहता है, नॉलेज सेमिनार, जैसे सेमिनार यहाँ कर रहे हैं उस तरह नॉलेज सेमिनार वहाँ पे होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस टाइम वहाँ पर फैशन के उनको बुलाया जाता है। फैशन शो होता है हमारा, रैंक शो हो गया, लाइव स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और ट्रेंड एरिया जिसमें प्रेजेंटेशन रहती है कि अभी हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है और अभी आगे क्या आने वाला है, उस पर भी हम काफ़ी वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चला एग्जीबिटर प्रमोशन है हमारे, जैसे इसमें हम जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स हैं उनको टारगेट एग्जीबिटर्स उनको सर्कुलर करते हैं, मेल्स करते हैं रजिस्टर कोड से, इन्विटेशन है, जो कुछ एसोसिएशन से जो ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं उनको टेली कॉलिंग है, ईडीएम्स हैं, मेलर्स, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया और कुछ पब्लिकेशन जिसपे हम ऑलरेडी ऐड होते हैं। फिर हमारे प्रमोशनल बायर्स, कैंपेन फॉर बायर्स, जो हमारे जितने बायर्स हैं उनके लिए, तो उनके हम डायरेक्ट मेलिंग करते हैं। ऑनलाइन मैगजीन है हमारी, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट कॉल टू ओवरसीज बायर्स बाय द टेलीकॉल, हमारा अपना एक कॉल सेंटर है, उसके थ्रू हम उनको बायर्स को टारगेट करते हैं। ईडीएम्स हैं, ईमेलर्स हैं, फ्लायर्स हो गए, कोलैबोरेशन विद ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशल इन्विटेशन टारगेट बायर्स फॉर द फैशन ज्वेलरी।
तो इसके अलावा जो हमारी जितनी एम्बेसीज इंडियन एम्बेसीज उनको हम टारगेट करते हैं, वो वहाँ के जितने भी लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने बायर उनके अप्रोचेबल होते हैं उन सबको वो इनवाइट करते हैं और वेब बैनर्स वगैरह हम उनके वेबसाइट पर लगाते हैं। अभी कुछ देखिए एम्बेसीज ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये हमारे मॉस्को रशिया में है, पनामा में है, इन्होंने हमारे बायर्स को ऑलरेडी सबको अपनी तरफ से इनवाइट भेजी है कि इस तरह का शो हो रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये देखिए हमारे और एम्बेसीज का है, ये उनकी ऑफिशियल एम्बेसीज की अपनी वेबसाइट है जिस पर उन्होंने ये चीज़ें डाली हुई। ये स्पेशल प्रमोशनल है, जैसे मान लीजिए आपके कोई बायर हैं जो इस शो में आना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल एक प्रमोशन एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हम जो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 है। जोन 1 में हम $750 दे रहे हैं, जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बाहर होंगे, साउथ अमेरिका, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और फिर जोन 2 है जिसमें हमारा $500 है, जो यूरोपियन इंक्लूडेड CIS, इसमें साउथ कोरिया, चाइना और अफ्रीकन कंट्री। फिर जोन 3 है हमारा $250, जो हमारा मिडिल ईस्ट जो भी नियर बाय करते हैं, गल्फ और साउथ अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफाइड हमारे उनके लिए एक प्रमोशनल कैंपेन है। अगर आपके कोई बायर ऐसे हैं, आप चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे, तो आप उनको इस तरह की प्रमोशनल स्कीम के बारे में बता सकते हैं। ये हमारे कुछ ये प्रमोशनल ऑफर जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर बाई चांस कोई इस पर इंटरेस्टेड हो अपने बायर्स को इन्वाइट करने के लिए, तो ये नंबर है उसमें। फिर ये हमारे फीचर्स हैं, फिर हम क्या क्या तरह के हम उसमें करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक करते हैं, प्लस फ्री फैसिलिटीज है वहाँ पर। उसके बाद हमारे बिजनेस सेंटर है, फिर फैशन शोज़ होते हैं जो भी मैंने आपको बताया। ओवरसीज बायर्स के विजिटर्स के लिए वहाँ पर हम अलग से एरिया डिफाइन करते हैं। डिस्प्ले अवार्ड्स हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, और हमारे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कुछ उसमें ब्रांड हमारे आते हैं वापस शो। ये हमारा बेसिकली उसके चार्जेस हैं शो के। जो रॉ स्पेस है वो 4,500 पर स्क्वायर मीटर प्लस 18% GST। इसमें मिनिमम आपका 30 स्क्वायर मीटर है। और अगर हम बिल्टअप की बात करें तो बिल्टअप में 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है प्लस 18% GST, और इसमें मिनिमम 12 स्क्वायर मीटर है। इसमें ये चीज़ें जो हमने देखा, आपके वॉल्स होंगे, कारपेट, नेम फेशिया, लाइट, टेबल एंड चेयर्स और बेसमेंट, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ये हमारा लास्ट ईयर के जो शो था उसकी कुछ आपको मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। ये इनॉग्रेशन है हमारा उसका, ये विजिटर्स, ये रैम्प शो हमारा। अब बेसिक रिस्पॉन्स क्या था, हमारा जो लास्ट 18 शो था उसमें अबाउट 1200 मीन्स जो बायर प्लस उनके बाइंग एजेंट्स और इंडियन ऑफिस जो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था 58 कंट्रीज से, और 250 एग्जीबिटर्स उसमें थे। और उसमें जो 150 ओवरसीज बायर का हमने सर्वे किया, उसके साथ उनको कि किस तरह से उनको कैसा शो रहा, किस तरह से। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट मैनेजर हैविंग एनुअल बिजनेस साइज ऑफ अप टू $1 मिलियन, तो ये उन्होंने हमारे को एक रिपोर्ट किया। इसमें देखिए जो हमारे इंफॉर्मेशन है जो उनको मिली, उन्होंने बताया कि उनको ऑफिशियल वेबसाइट से, रेफरेंसेस से उससे मिली, और फैशन के बायर मैक्सिमम इंटरेस्ट उनका था उसमें। और उनका सेकेंडरी था हैंडबैग्स, पर्सेस और इसके साथ जो एसेसरीज है उसके लिए। और मोस्ट ऑफ द बायर्स ने कहा कि वो कुछ और सप्लायर ऐसे चाहते हैं जो इसके साथ, जैसे मैंने कहा कि इस बार हम 3 सेगमेंट और ऐड कर रहे हैं, वो इसमें हम नए सेगमेंट लेकर आए। और जो देखिए 53% जो बायर थे पिछले, उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि 1,000 से लेकर 50,000 तक डॉलर का एक्सपो उन्होंने ऑर्डर किया, और 17% ने कहा कि 50,000 से लेकर 1 लाख, और बाकी जो रेस्ट है उन्होंने बताया कि $1,50,000 से लेकर $5 लाख तक का उन्होंने आप बिजनेस किया। और इस पर जो हमारा सेटिस्फेक्शन रेशियो है वो काफ़ी अच्छी है। 99% जो बायर जो है उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली नेक्स्ट शो में आएंगे। तो ये हमारे सक्सेस रेशियो है इस शो का। और जो कुछ लोग इसमें मेंबर नहीं है, अगर कोई ऐसे हैं जो मेंबर नहीं हमारे ऑफिस यहाँ पर, सभी मेंबर हैं, तो देखिए मेंबरशिप के लिए हमारे जो है ये जितने भी हमारे शो हैं मेंबर बेस्ड हैं, मेंबरशिप आपको जो रही है उसमें। तो अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आप वो करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो
7,500 प्लस 18% GST है, ये 8850। ये आपको DGFT के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये उनका वेबसाइट है, वहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सर पहले कुछ कहना चाहते हैं आज के हमारे सेमिनार नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा, इतनी देर से सुन रहे हैं, इनको सुना उनको सुना। एक लाइफ की एक छोटी जर्नी होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई जब इनकी इसके थे, आई वॉज 22 when I joined export business. I worked in some CHA company as a loader. 400 रुपये, ठीक है, लाइफ निकाली। धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिली, एक्सपोर्ट शुरू की। एक्सपोर्ट शुरू में अच्छे लोग मिले। आज ये एक सिस्टम है इनका कि सारा कुछ इट इज़ ऑनलाइन। तो हमारे टाइम में ये नहीं था, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं होता था कि हम अगर शाम को कुछ हो जाए तो कौन इंटीमेशन देगा कि हम जिंदा हैं या नहीं हैं। I was not from here, I was from Chandigarh. My father was IPS. फिर जब हमने बहुत सारी स्ट्रगल की दोस्तों ने, क्योंकि उस समय अक्सर ये होता था कि आपको हर एक कंट्री का वीज़ा लगवाना पड़ता था और जाना पड़ता था, और हर एक 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद यूरोप के अंदर एक पुलिस चेकिंग होती थी, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन तुम्हें अलाउ करता, समटाइम यू हैव ए लॉट ऑफ पीपल हैव सैंपल्स एक्सपोर्टर्स के पास, तो जैसे ही देखते थे इंडियन पासपोर्ट है, इसके बाद सैंपल्स है, यू कम डाउन, और वो अपने ऑफिस में ले जाते थे स्टेशन पे। वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उन्होंने चीजें देखनी, ये क्या ये क्या ये क्या, उनको बोलना, ये उन्होंने कहा नो 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 नो, ओके नाउ यू हैव टू पे सम ड्यूटीज लाइक $100 और यूरो, $100, और अगर हर एक कस्टम के ऊपर हम देते थे तो हमें ये रियलाइज होता था कि रात को 2 बजे आप हमें ट्रेन से उतार देते हो -10 डिग्री के अंदर, और जाके रूम के अंदर कहते थे ओके आप दिखाओ ये सब चीजें क्या हैं, तो उनको एक्सप्लेन करते थे। और कई लोग तो इसलिए उतारते थे कि दे जस्ट वांट टू, उनके लिए वो होता था कि ठीक है यार हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, इसको हम हरास कर देंगे। तो उसके 6 घंटे के बाद नेक्स्ट ट्रेन मिलनी, तुम खड़े रहो। हम लोग 5 फ्रेंड्स थे, और मुझे याद है कि ये यूके के अंदर एक फेयर कर रहे थे। देन वी डिसाइडेड कि आने वाली जनरेशन अगर यही करेगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो वी प्लान्ड ए फेयर इन 94 एज ही सेड। उस फेयर के अंदर 50 आदमियों को लेके आना एक्सपोर्टर्स को हमारे लिए मुसीबत थी। वी बुक हॉल नंबर 18 इन प्रगति था। सबसे रिक्वेस्ट करनी, उन्होंने बोला नहीं है, तो हमने कहना ठीक है 100 मीटर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसको करेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमने फेयर शुरू किया। 50 फर्स्ट ईयर 50, then 150 people, then we booked a hall number 14, and then one day we booked the whole Pragetim Dham। और हमें खुशी हुई कि जो 50 एक्सपोर्टर थे उसके अंदर 2,500 एक्सपोर्टर पार्टिसिपेशन पे आ गए, और 2,500 वेटिंग के ऊपर, वेटिंग लिस्ट है, अभी भी वेटिंग है हमारे यहाँ पे। कुछ जब बंदा कोई दुखी होता है ना, तो वो कहता है कुछ ना कुछ करें। हमें ये ITPO वालों ने बहुत परेशान किया। कोई पास नहीं देते थे, कोई कहते थे कार की गाड़ी नहीं, कोई पानी नहीं, तुम क्या करते हो, वो करो, पैसे दो। All the 5 people we sat, हमने कहा यार ऐसा है। I was the youngest chairman that time. I know 30 time I was twice chairman of EPCS. Now I am also in the board in the Expo. We are a founder. So we decided आने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए हम क्या करें, हम अपना एक एक्सपो सेंटर बनाएंगे। पैसे नहीं है जेब में हमारे कुछ भी। हमारे मंत्री अच्छे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला देखो भी गवर्नमेंट से तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं वी कैन डू इट। एंड वी डिड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर, ब्ला ब्ला ब्ला।
ये भी यंग थे उस समय सारे, और वी प्लान अल्टीमेटली हमें यही लैंड मिली जो ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर है। तो हमने उन सर से बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कहते कितने पैसे हैं? हमारे कहा कि हम मैक्सिमम करें, अपने घर भी बेचें तो 3-3.5 करोड़ का इकट्ठा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप हमें लैंड दे दो, हम तुम्हें 30 साल के अंदर पैसे दे देंगे। हाउ मेनी एकर्स? हमने कहा पहले 25 एकड़, देन वी सेड नो, वी नीड 60 एकड़। उसने बोला आर यू श्योर 60 एकड़? एक 100 एकड़ ना, कल नहीं मिलेगी ये लैंड। एनीवे किसी ने बोला नहीं कल नहीं चली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड 1996 we started this campaign, and 2000 we bought a land, and 2003 we started construction. I was a project chairman for that also, Rakesh, and my friend also Navratna Sundaria also, and we complete this project in 2006. We shifted our fair there. We called Honorable मनमोहन सिंह जी देयर फॉर इनोवेशन। उनको पता ही नहीं है क्या नहीं है, ये क्या चीज़ बना दी। उन दिनों ये एक्सप्रेस वे नहीं होता था, हम गांव के अंदर से आते थे, 60 किलोमीटर के अंदर से। और बड़े बायर्स ने बोला देखो बड़ा दूर है, शो नहीं चलेगा। ITPO ने बोला, मगर नाउ यू सी टुडे कि वहाँ पे है क्या। कोई कहता होटल नहीं है। वी बिल्ट ए होटल 148 रूम्स। 1.5 साल से वहाँ पे बायर रुकते हैं। किसी ने बोला अभी भी कम है, और अभी एंड ऑफ दिस मंथ 80 रूम्स आर आल्सो कमिंग। इट्स ऑल 5 स्टार। आए बंदा उसमें रहे। कोई हमारे डिग्निटरीज या कोई अभी PMO साहब आए थे तो कहने लगे भाई कहाँ पे उतरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि वो सारे 3 चौपर अंदर ही लैंड करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स में। ही गेम वो कहता हमें पता ही नहीं है कि आप लोगों ने क्या बनाया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस एक्सपोर्टर बनने से पहले हम लोग एक्सपोर्टर ही थे, और हमने ये साथ अपनी आने वाली जनरेशन जो 500 साल तक अगर कोई एक्सपोर्टर बनना चाहता है उसके लिए सारी फैसिलिटीज खड़ी कर दी हैं। ये देख लीजिए आप। सो दिस इज लाइफ, और इसके ऊपर चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। और सर इसीलिए हम ये सेमिनार वगैरह करते हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को अपडेट कर सके। अगर कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारे को एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आज की डेट में हमें ये चीज़ जरूरत पड़ रही है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चले या उसका कोई भी सोल्यूशन है वो भी है। तो ये हमारी कोशिश रहती है, और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि हम आगे करते रहें। तो अब एक मोमेंटम के साथ थैंक यू so much.